Hello dear students, welcome to the third lecture of surface chemistry. In this lecture, I will discuss the colloidal solution of colloids in detail. Colloidal solutions are very important for the competition point of view because in most of the examinations like JEE Mains, JEE Advanced, NEET, BITSAT, at least one question from the colloidal solution definitely comes. So colloidal solutions are very important. In fact, 2/3 of the surface chemistry chapter that is all about colloids. So we will discuss the colloids in detail. So let's start the lecture. First of all, I will discuss the content. What will be discussed in this chapter? So first of all, basic terms regarding true solution, colloidal solution, suspension will be discussed. The difference between true solution, colloidal solution and suspension will be explained in detail. After that, I will discuss the basics of colloids. After that, classification of colloids will be discussed in detail. This is very important for the competition point of view. I will discuss this topic in detail. Then preparation of colloids will be discussed. After that, purification and properties of colloids will be discussed. Properties of colloids, this is very important for the competition as well as the CBSE. Few of the colloidal properties you must have studied in the 9th and 10th, like Tyndall effect and the Brownian movement. It also comes in the 9th and 10th syllabus. So you must have studied Tyndall effect and the Brownian movement. Important topics hai. I will discuss this in the detail. Then stabilization of colloid will be discussed. In this one term gold number, that is favorite topic of the JEE Mains and the advanced. I will discuss this in the detail, and it is the numerical part of this chapter. Mostly it is a theoretical chapter, but this gold number, that is a numerical part. Then emulsion and gels will be discussed. Gels are not in the syllabus of CBSE, but it is a part of competition, so I will discuss this in detail. After that, application of colloids will be discussed. Application of colloids like coagulation of rubber, leather tanning, okay, and the cotton smoke precipitator is there, formation of delta. These are all application of colloids. So it is important for the CBSE, not for the competition, but CBSE it is very important. So all these topics will be discussed in the detail. It is a basically theoretical topic, not a numerical one. Only the gold number is the numerical part. So I will discuss these topics in the detail. So let's start the lecture. So first of all, I will discuss the solution. So what is the solution? Solution क्या होता है? It is a uniform mixture of two or more substances. It is called a solution. Uniform mixture two or more substances का उसको solution बोलते हैं. The substance in the lesser amount या the component in the lesser amount it is called solute, and the substance in the more amount is called the solvent. Already हमने किया है कि जो कम क्वांटिटी में होता है उसको solute बोल देते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है that is solvent. ये बाइनरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी हो सकती है, पर हमने यहाँ पर बाइनरी को करना है. बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है. स्मॉल वन विल बी सॉल्यूट एंड बिगर वन विल बी सॉल्वेंट. दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर हमने बाइनरी को ही डिस्कस करना है. जो सोल्यूशन है दैट में बी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस. जो हमने वहां पर किया था सोल्यूशन दैट वाज होमोजीनियस, पर एक्चुअली में सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेटेरोजीनियस भी हो सकता है. अब वो कैसे? वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पे. तो डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट है उसका पार्टिकल साइज कितना है, वो कितना छोटा या बड़ा है. सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. सॉल्यूशन को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन और सिंपली कोलाइड्स, सस्पेंशन. जो हमने चैप्टर सेकंड किया था उसमें हमने ट्रू सॉल्यूशंस को स्टडी किया था. वहां पे मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि जो सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं these are the true solutions. Actually solutions are of 3 types: true solutions, colloidal solutions और suspensions. वहां में हमने सिर्फ true solutions को किया था. यहाँ पर हमने colloidal solutions को स्टडी करना है. सस्पेंशंस का कोई इतना रोल नहीं होता, तो उसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही हमने देनी है. तो आगे चलते हैं इसमें. तो सबसे पहले तो ट्रू सॉल्यूशन, colloidal solution, सस्पेंशंस होते क्या हैं, इसको एक बार इसकी बेसिक टर्म्स डेफिनेशंस को देख लेते हैं. ट्रू सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस. होमोजेनियस मिक्सचर होगा, जो फेसेस हैं कंपोनेंट्स की उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. द सोल्यूट पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर. दिस इज इंपॉर्टेंट. जो इसका सोल्यूट पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा.
एग्जाम्पल इसके शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो दैट इज अ ट्रू सोल्यूशन, या सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो दैट इज अ सॉल्ट सोल्यूशन। इसमें जो शुगर पार्टिकल है या सॉल्ट पार्टिकल है उसका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होगा। ओके, तो these are example of true solutions. Then colloidal solutions, it is the heterogeneous mixture of two or more than two substances. अब ये heterogeneous है, इसका मतलब the phase of solute particle and the solvent particle that is different. उसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ट्रू सॉल्यूशन पे, पर इसमें कर सकते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1000 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से छोटा होगा पर 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल इसके ब्लड मिल्क, आपको ये पता होगा जो ब्लड होता है इसमें प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो इट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब ये इसके कंपोनेंट है और वाटर के अंदर वो या ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो डिसॉल्व होते हैं। मिल्क इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें फैट प्रोटीन्स डिस्पर्स्ड हैं किसमें, वाटर के अंदर, डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर। फिर आते हैं सस्पेंशन, ये भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस है। द सोल्यूट पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर। तो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन, इनमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मेन क्या है, दैट इज अ पार्टिकल साइज। ट्रू सॉल्यूशन का लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, कोलाइडल का 1000 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर के बीच में होगा, और इसका 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा सस्पेंशन का। तो पार्टिकल साइज दैट इज द मेन थिंग, उसी के बेसिस पे हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन को डिफाइन करते हैं। अब इनमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या हैं उनको देख लेते हैं। पहले इसके एग्जांपल देख लो। यहाँ पे दिस इज अ ट्रू सॉल्यूशन, ओके, शुगर इन वाटर है, दिस इज द मिल्क दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड सैंड इन वाटर दैट इज सस्पेंशन। अब यहाँ पर एक जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, देखो यहाँ पर कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यू कैन नॉट डिफाइन फेज कि इसमें जो शुगर पार्टिकल है वो कहाँ पे है एंड वाटर पार्टिकल क्या है वो कहाँ पे है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे कर सकते हो, ये जो ब्राउनिश आपको नजर में आ रहा है दिस इज सैंड और बाकी क्या है वाटर, दिस इज सैंड बाकी क्या है वाटर। तो ये हेटेरोजेनियस हो गया, यहाँ पर फेज डिफरेंस आता है। सैंड और वाटर पार्टिकल में आप क्लियरली एक डिफरेंशिएशन कर सकते हो बाय नेक्ड आई, पर यहाँ पर वो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है शुगर एंड वाटर में। तो वो तो मिल्क में भी पॉसिबल नहीं है, मिल्क में भी आपको नजर नहीं आ रहा कहाँ प्रोटीन है और कहाँ पे वाटर है या मिल्क है, तो ठीक है नजर नहीं आ रहा। बट अंडर पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अगर एक पावर माइक्रोस्कोप को लेते हो या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को लेते हो तो ब्लड में भी और मिल्क में भी आप प्रोटीन पार्टिकल्स को या फैट पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। पर ये कब होगा, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ही होगा, नेक्ड आई से नहीं होगा। तो देयरफॉर इस तरीके से हमने इसकी डिफरेंशिएशन की गई है। तो आगे चलते हैं, अब इनमें डिफरेंशिएशन पॉइंट को देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। तो ये एक किस्म का एक चार्ट सा बनाया गया है, यहाँ पर प्रॉपर्टी मेंशन है, दिस इज सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन। अगर मैं कोलाइड बोलता हूँ या कोलाइडल सॉल्यूशन बोलता हूँ या सिंपली कोलाइड्स बोलता हूँ तो एक ही चीज है। तो सबसे पहले तो नेचर, कि इसकी नेचर क्या है, सस्पेंशन होता है हेटेरोजेनियस क्योंकि फेज डिफरेंस इज क्वाइट विजिबल, दिस इज हेटेरोजेनियस, फेज डिफरेंस इज विजिबल अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप, और ये होमोजेनियस, फेज डिफरेंस इज नॉट विजिबल, किसी भी माइक्रोस्कोप से हम फेज डिफरेंस को पता नहीं लगा सकते। पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर या 10⁻⁶ मीटर से ज्यादा। देखो यूनिट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो, एंगस्ट्रॉम में भी आया तो भी कर सकते हो, आप एक यूनिट को याद रख लो, बाद में आप उसको हमेशा कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि आपको कन्वर्जन आती है। तो इट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर, और जबकि ट्रू सॉल्यूशन है वो 1 नैनोमीटर से कम है। सो दिस इज द मेन पॉइंट, पार्टिकल साइज, इसी पे सारी कहानी, ठीक है। फिर उसके बाद में सेपरेशन, अगर हमने सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तब
ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लेबोरेटरी में आपने देखा होगा, घर में भी होगा, तो सस्पेंशन पॉसिबल है। जैसे रेत है या चॉक इन वाटर है, अगर आप उसको छानते हो, उससे फिल्टर करते हो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से, तो वाटर पार्टिकल्स निकल जाएंगे क्योंकि छोटे हैं, तो उनके पोर से निकल जाएंगे फिल्टर पेपर के। बट सैंड पार्टिकल्स दे आर बिगर, तो वो सैंड उसके फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, तो ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से पॉसिबल है। कोलाइडल दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप मिल्क को छानते हो किसी छलनी से या फिल्टर पेपर से, तो सारे का सारा मिल्क उसमें से पास हो जाएगा, ब्लड भी पास हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स हैं फैट मिल्क में है या आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड में है, तो वो फिल्टर पेपर से नहीं पॉसिबल। ट्रू सॉल्यूशन का तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आप शुगर सॉल्यूशन है उसको फिल्टर पेपर से करो फिल्टर, कुछ नहीं होगा, शुगर सारी की सारी निकल जाएगी। फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक मेथड होता है, वो आगे करेंगे। तो सस्पेंशन का क्या है, दैट इज पॉसिबल। ओके, जब फिल्टर पे नॉर्मल फिल्टर पेपर से हो जाता है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी हो जाएगा। यहाँ पे पॉसिबल है कोलाइडल सॉल्यूशन का। अल्ट्रा फिल्टर पेपर का मतलब क्या है कि उसमें जो नॉर्मली फिल्टर पेपर के मुकाबले में पोर साइज छोटा है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स वहां पे फिल्टर हो जाते हैं। ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, अभी नहीं करते इसको। ट्रू सॉल्यूशन का पॉसिबल ही नहीं है। फिर आता है सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या है कि मैंने सपोज करो एक सॉल्वेंट लिया वाटर, उसके अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व कर दिया, तो क्या जो सोल्यूट को मैंने डिसॉल्व किया उनकी सेटिंग हो सकती है, वो नीचे बैठ सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने रेत लिया, सैंड लिया, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो कुछ देर बाद क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स अपने आप नीचे बैठ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो सस्पेंशन के केस में क्या है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं दे सेटल अंडर ग्रेविटी, वो अपने आप ही नीचे बैठ जाते हैं। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, दे सेटल ऑन द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखते हैं और उसको रोटेट करते हैं एट वेरी हाई स्पीड, तो जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर आते हैं ट्रू सॉल्यूशन, दे डू नॉट सेटल, वो किसी भी कंडीशन में सेटल नहीं होते, हाईली स्टेबल। फिर विजिबिलिटी, पार्टिकल्स विजिबल टू नेक्ड आई और अंडर माइक्रोस्कोप। सस्पेंशन में आप अभी आपको बताया था, जो जो सैंड इन वाटर है, तो सैंड पार्टिकल्स आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, चौक को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो नेक्ड आई से आइडेंटिफाइबल है। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं या स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है एक, वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ही आप पता लगा सकते हो। जब भी हम ब्लड का टेस्ट करते हैं, आरबीसी काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट्स कितने हैं, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ही करते हैं। पार्टिकल्स आर इनविजिबल, ये किसी तरीके से आप पता ही नहीं लगा सकते, किसी भी माइक्रोस्कोप से आप पता नहीं लगा सकते। फिर आता है अपीयरेंस। जो सस्पेंशन होते हैं ओपेक, देखो आपने रेत को पानी में डिसॉल्व किया सैंड को, तो आर पार आप दे नहीं सकते, आपको सैंड नजर आएगी, तो इट इज ओपेक। ये जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, मैं जनरली कह रहा हूँ, मिल्क सोल्यूशन दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट। तो जनरली ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट भी हो सकते हैं, पर ये हमेशा ट्रांसपेरेंट है। चाहे सॉल्ट सोल्यूशन ले लो या आप ले लो दिस वन शुगर सोल्यूशन ले लो, हमेशा ट्रांसपेरेंट होंगे। तो टिंडल इफेक्ट, इट शोज। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसको डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि ये एक फुल फ्लेज टॉपिक है। तो इट शोज, सस्पेंशन भी शो करता है, कोलाइडल भी शो करता है, बट ट्रू सॉल्यूशन इट डज नॉट शो। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, डिफ्यूजन क्या मतलब होता है, मिक्सिंग। तो ये डू नॉट डिफ्यूज, ये डिफ्यूज नहीं होते, ये डिफ्यूज होते हैं स्लोली, और जबकि ट्रू सॉल्यूशन वाले इट डिफ्यूजेस रैपिडली। ब्राउनियन मूवमेंट, दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में आएगा, डिटेल में बताऊंगा। मे शो, शोज निग्लिजिबल, ये बिल्कुल ही नहीं शो करते। तो ब्राउनियन मूवमेंट या टिंडल इफेक्ट जब आएगा तब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए ये आप याद रखिए कि कुछ जो ये पॉइंट्स हैं क्या क्या हो सकते हैं। ये कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको कि जहां पे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल्स एंड सस्पेंशन के बीच में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पूछे गए हैं। तो नॉर्मली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, हालांकि पार्टिकल साइज पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है कि कोलाइडल का क्या रेंज में है, ट्रू का क्या रेंज में है, सस्पेंशन किस रेंज में है। उसमें यूनिट कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए कि नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया या पिकोमीटर में कर लिया या मीटर में कर लिया। तो वन ऑफ द यूनिट्स को आप याद रखो और बाद में उसको कन्वर्ट कर लो। आगे चलते हैं। अब हमने सीधा आना है कोलाइड्स पे, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस हमने कर लिए थे उसमें सेकंड चैप्टर में, तो सीधा हम कोलाइड्स को करेंगे।
और कोलाइड जो है वो सरफेस केमिस्ट्री का 2/3 पार्ट को कवर करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो डेली लाइफ है उसमें भी हम कोलाइड्स को यूज करते हैं। आइसक्रीम दैट इज ए कोलाइडल सिस्टम, जो जेल होती है वो सारी कोलाइडल सिस्टम है। मिल्क इज ए कोलाइडल सिस्टम। तो स्मोक जो है दैट इज ए कोलाइडल सिस्टम। फॉग इज ए कोलाइडल सिस्टम। मोस्ट ऑफ द नेचुरल थिंग्स, ओके, कोई भी आपके जो सॉल्यूशंस है जो हम यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन दे आर कोलाइडल इन नेचर। पेंट एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो कोलाइडल कोलाइडल सॉल्यूशन बनता कहते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, व्हाट इज कोलाइड। A collide is a heterogeneous system in which one substance is dispersed as very fine particles in another substance called the dispersion medium। देखो सीधी बात है, ये किस्म का सॉल्यूशन ही है, बस यहाँ पे हमने थोड़ी टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया। एक तो ये हेटेरोजेनियस सिस्टम है, दूसरा वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स मतलब यह मतलब डिसॉल्व्ड है, उसको हमने नाम दे दिया डिस्पर्स्ड फेज का, यानी कि ये सोल्यूट हो गया। सोल्यूट इज इक्विवेलेंट टू डिस्पर्स्ड फेज, किस एज ए वेरी फाइन पार्टिकल, बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम क्या है आपका? सॉल्वेंट। तो यानी कि थोड़ी टर्मिनोलॉजी को हमने चेंज कर दिया, सोल्यूट को नाम दे दिया डिस्पर्स फेज का और सॉल्वेंट को नाम दे दिया डिस्पर्जन मीडियम का। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं। डिस्पर्स फेज डीपी, द फेज विच इज डिस्पर्स्ड थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड द डिस्पर्स फेज और डिसकंटीन्यूअस फेज और इंटरनल फेज। इनको याद कर लेना, इसको डिसकंटीन्यूअस फेज या इंटरनल फेज भी बोलते हैं। द फेज विच इज डिस्पर्स, जिसका मतलब डिसॉल्व थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड द डिस्पर्स फेज, इसका शॉर्ट फॉर्म है डीपी। तो मैं अगर डीपी बोलता हूं तो दिस इज डिस्पर्स फेज इक्विवेलेंट टू सोल्यूट। ओके, डिसकंटीन्यूअस फेज या इंटरनल फेज को बोलेंगे। फिर सेकंड आता है डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें डीपी डिसॉल्व है। ए मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड या डीपी इज डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड द डिस्पर्जन मीडियम। इट इज नोन एज अ कॉन्टिन्यूअस फेज और आउटर फेज और एक्सटर्नल फेज। इन नाम को याद कर लेना, कई बार नाम पूछ लेते हैं, बिट सेट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आया था, वो नाम पूछ लेते हैं कि डीपी को और क्या क्या बोलते हैं, डिसकंटीन्यूअस फेज, इंटरनल फेज, जबकि डीएम को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फेज, आउटर फेज या एक्सटर्नल फेज। तो कोलाइडल सॉल्यूशन किसका मिक्सचर हो गया? डीपी प्लस डीएम का, डिस्पर्स फेज प्लस डीएम का। और अगर मैं इसी के एनालॉगस लेता हूँ ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में हम क्या बोलते थे? इट इज सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यानी सॉल्वेंट को डिस्प्लेस किसने कर दिया? डीएम ने, और सोल्यूट को कर दिया डीपी ने, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे सपोज करो मैं सिल्वर सोल की बात करता हूँ, ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें सिल्वर क्या है? दैट इज डीपी सोल्यूट है, और वाटर क्या है? डी। तो दिस इज ए सिल्वर सोल। इसमें जो एजी है, सिल्वर के पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व है, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम क्या? वाटर। नॉर्मली ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि वाटर के अंदर सिल्वर कैसे डिसॉल्व हो सकता है। उसको बनाने का एक तरीका होता है, एक मेथोडोलॉजी है, वो डिटेल में स्टडी करेंगे। अदरवाइज तो ऐसा लगता है कि गोल्ड और सिल्वर तो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो ही नहीं सकते, वो तो नीचे बैठ जाएंगे। इसको बनाने का कुछ तरीका होता है, मेथोडोलॉजी, वो बाद में स्टडी करेंगे, बट एग्जिस्ट करता है। देयर इज ए सिल्वर सोल, देयर इज ए गोल्ड सोल। सिल्वर सोल मतलब सिल्वर डिसॉल्व इन द वाटर, गोल्ड सोल मतलब गोल्ड डिसॉल्व इन वाटर। आगे चलते हैं। जो असेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ए ट्रू सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन में ट्रू सॉल्यूशन एंड ए कोलाइड इज दैट ऑफ पार्टिकल साइज, ठीक है। व्हाइल इन ए सॉल्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें आयंस है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स हैं। इन ए कोलाइड डिस्पर्स फेज में कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ ए सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन और सिंथेटिक पॉलीमर और एन एग्रीगेट ऑफ मेनी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ओके, अब यहाँ पर क्या है, देखो, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें आयंस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही होंगे, ठीक है। ओके, जबकि जो आपका वो है दिस वन कोलाइड है, कोलाइड सॉल्यूशन में या तो सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल होगा, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा, जैसे प्रोटीन या सिंथेटिक पॉलीमर, उसका क्या होगा, वो डिस्पर्स फेज की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। या छोटे छोटे जो एटम्स हैं, वो आप देखो, सपोज करो अभी आपको बताया कि जो उसका साइज है दैट इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, सॉरी 1 नैनोमीटर से ग्रेटर है, ठीक है, कोलाइडल का।
और लेस देन है 1000 नैनोमीटर, ये इसकी साइज में आता है। दिस इज कोलाइडल साइज। अब ये चाहिए मुझको, तो ये भी हो सकता है कि एक कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है प्रोटीन का, तो वो इस रेंज में फिट आ जाए, ठीक है। या ये प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में फिट बैठ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सपोज करो मैं गोल्ड सोल की बात करता हूँ, तो जो गोल्ड सोल है, गोल्ड का जो एटम होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, बट कुछ छोटे छोटे गोल्ड के एटम्स वो आपस में मिलके एक एग्रीगेट, एक इसका मतलब ग्रुप बना सकते हैं, एग्रीगेट मतलब ग्रुप बना सकते हैं, जिसका जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में हो। तो दिस इज पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके से कोलाइडल फॉर्मेशन होती है। कोलाइडल पार्टिकल्स आर लार्जर देन द सिंपल मॉलिक्यूल्स बट स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड। देखो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल से तो लार्जर होंगे, पर इतने बड़े भी नहीं होंगे कि सस्पेंडेड हो। सस्पेंडेड मतलब आंखों से हम देख सके, तो रेंज 1 एंड 1000 नैनोमीटर के बीच में होगी। आगे चलते हैं। उसके बाद में जो कोलाइड्स हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो कोलाइड्स मैंने अभी आपको बताया कि इनका नंबर ऑफ यूजेस है, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में कोलाइड्स जो हैं वो हर जगह यूज होते हैं। जो मेडिसिन आप यूज करते हैं, जितने भी सिरप्स हैं वो सारे के सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। तो ऐसा यूनिकनेस क्या है कोलाइडल में, अब उसकी यूनिकनेस को स्टडी करते हैं। जो कोलाइड्स हैं दे हैव लार्ज सरफेस एरिया पर यूनिट मास। कोलाइड्स का एक लार्ज सरफेस एरिया होता है पर यूनिट मास। अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम बने हुए हैं। कंसीडर ए क्यूब विद 1 सेंटीमीटर साइड। ये 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, ठीक है। दिस एज ए मतलब ये 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा ये आपको पता है, सिंपली इट वुड बी द 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 फेस हैं, तो 1 6 × 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पता है, मैथमेटिक्स की सिंपल चीज है। अब क्या करते हैं, इसको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करता हूँ। तो मैंने इसको 10⁻12 में क्यूब्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। दीज क्यूब्स जो हैं ये कितने क्यूब्स हो गए नजर नहीं आ रहे, पर मैंने इसको 10⁻12 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया। वो कैसे डिवाइड किया उसको रहने दो, पर डिवाइड कर लिया बाय ग्राइंडिंग बाय सम एनी मेथड। 10⁻12 क्यूब से डिवाइड कर लिया। तो जब 10⁻12 क्यूब्स में डिवाइड किया तो जो उनका सरफेस एरिया है इट कम्स आउट टू बी 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर या 6 मीटर स्क्वायर। ओके, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी क्यूब को मैंने डिवाइड कर दिया 10⁻12 क्यूब्स में। उनका जो सरफेस एरिया है दैट इज 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना बढ़ गया, 10,000 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। 10,000 टाइम्स इसका बढ़ गया। मास नहीं बढ़ा, जो इसका मास सपोज कर लो अगर ये 10 ग्राम था तो इन सभी क्यूब्स का भी 10 ग्राम ही है, बट डिवाइड करने से हुआ क्या, 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। और सपोज कर लो ये कोलाइडल रेंज में है, दीज आर इन द कोलाइडल रेंज। तो अगर एक कोलाइडल रेंज बाय वर्ड, क्योंकि डिवाइड ही मैंने इस तरीके से किया कि कोलाइडल रेंज में आ जाए, तो दीज आर इन द कोलाइडल रेंज। यानी कि 10 ग्राम को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया कि 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर उनका एरिया बन गया और मास उतना ही रहा। तो अब इसका यूज क्या है, यूज बिल्कुल है इसका। हमने केमिकल किनेटिक्स किया हुआ है। केमिकल किनेटिक्स में और पीछे भी जो एब्जॉर्प्शन करवाया था, तो उसमें जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एब्जॉर्प्शन होगा। ये आपको बताया गया था कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया है तो एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, और जितना बढ़िया एब्जॉर्प्शन होगा जो केमिकल रिएक्शन है उतनी फास्ट होगी। दिस इज द यूटिलिटी। जैसे सपोज करो स्टमक डिसऑर्डर हो गया, ओके, तो आपने जेलुसिन लिया या कोई दूसरा ऐसा मेडिसिन को लिया जो कि लिक्विड फॉर्म में है या कोलाइडल फॉर्म में है, तो वो क्या करेगी, वो बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब होगी एंजाइम पे मोर इफेक्टिवली। सारे एंजाइम्स हैं, बैड एंजाइम्स हैं, तो उस पे ये मेडिसिन या ड्रग जो है मोर इफेक्टिवली एब्जॉर्ब होगी। द रीजन इज दैट सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो केमिकल रिएक्शन उतनी फास्टर होगी। कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो उतनी फास्ट होगी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। तो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ कोलाइड्स।
फिर इसमें एक और चीज भी दिमाग में आती है कि ठीक है, तो ये 10 रेज़्ड पावर 12 क्यूब्स क्यों है, इससे और छोटा कर लो, इससे और छोटा कर सकते हैं, 10 रेज़्ड पावर 20 क्यूब्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उससे सरफेस एरिया और बढ़ जाएगा, दैट इज ओके। बट प्रॉब्लम क्या है, वो कोलाइडल रेंज में नहीं रहेंगे, वो सस्पेंशन में चले जाएंगे। अगर मैं इसको 10 रेज़्ड पावर 20 क्यूब में चले कर देता हूं, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, पर वो किस में चलेगी, वो सस्पेंशन में चलेगी, तो सस्पेंशन ये ट्रू सॉल्यूशंस में चलेगी, क्योंकि अब ये जो इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं ये कोलाइडल रेंज में नहीं रहेंगे, ये चले जाएंगे ट्रू सॉल्यूशंस में, उसमें। तो अगर ट्रू सॉल्यूशंस में चलेंगे, उनकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती। ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल साइज होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी नहीं होती। ये ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन होती है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, बट जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो कितने बड़े कितने छोटे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कोलाइडल रेंज में जो पार्टिकल होते हैं उनकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, जो ट्रू सॉल्यूशंस में चलेंगे, जो 1 नैनोमीटर से छोटे होंगे, तो वो एंजाइम्स पे या किसी दूसरी चीज पे एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे, तो उनकी यूटिलिटी नहीं रहेगी। तो हमको उतना ही छोटा करना है कि कोलाइडल रेंज में चला जाए, कोलाइडल रेंज में एक सफिशिएंट लार्ज सरफेस एरिया हो गया और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बढ़ गई। ट्रू सॉल्यूशंस वालों की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं होती, वो अच्छे एब्जॉर्बेंट नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। तो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ कोलाइड्स। आगे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स को हमने डिस्कस करना है। तो इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ डीपी एंड डीएम। हमने फिजिकल स्टेट देखनी है डीपी एंड डीएम की, तो 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम जो है पॉसिबल है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस पे क्वेश्चन जेई मेंस और नीट दोनों में पूछे हैं। एडवांस में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, सीबीएसई में आएगा, जेई मेंस में आएगा और नीट में आएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, क्वेश्चंस करवाऊंगा आगे आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है डीपी, कि डीपी क्या है, डीएम क्या, वो टाइप ऑफ कोलाइड क्या होगा उसका एग्जांपल। तो सबसे पहले तो डीपी लेते हैं, सॉलिड। सॉलिड लिया डीपी और उसको सॉलिड के अंदर डिसॉल्व किया, उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। सोल मतलब सॉल्यूशन, तो दिस इज सॉलिड सोल। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, अलॉयस, दो अलॉयस को लिया, मिक्स कर दिया, मेल्ट किया, मिक्स कर दिया, तो अलॉय बन गया कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, कि जैसे जो पेपर वेट नहीं होते वो ग्लास के होते हैं, और उसके अंदर कुछ सॉलिड्स जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं, कलर्ड सॉलिड्स, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस कोलाइडल सॉल्यूशन। जेमस्टोन्स हो गए, रूबी ग्लास हो गया, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल। तो इस एग्जांपल पूछ लेते हैं, एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल बताइए, अलॉयज, कलर्ड ग्लासेस, जेमस्टोन्स, रूबी ग्लास, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल। तो उसके बाद में आता है सेकंड, सॉलिड इन लिक्विड। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। सॉलिड लिया हमने डीपी, मीडियम क्या है, डीएम क्या है, दैट इज द लिक्विड, तो उसको बोलते हैं सोल। ओके, कई बार इसको लिक्विड सोल भी है, लिक्विड सोल भी बोल देते हैं। तो अगर आप सीधा सोल ही बोल रहे हो ना, तो दैट इज क्लियर, सॉलिड इन लिक्विड उसी से बना है, SOL। लिक्विड सोल बोल दिया आपने तो बिल्कुल ही क्लियर है कि यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, पेंट्स। पेंट्स में अभी आपको पीछे कहा था, जो नोवेलाइट होता है वो वाटर के अंदर डिस्पर्स होता है, जो पॉलीमर चैप्टर किया था। सेल फ्लूइड्स हो गए, स्टार्च डिस्पर्स इन वाटर, स्टार्च को पानी में घोला, स्टार्च सॉल्यूशन बना लिया। गोल्ड सोल, गोल्ड को वाटर में, सिल्वर सोल, गोल्ड सिल्वर को पार्टिकल उसमें वाटर में डिसॉल्व किया, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड सोल या सोल का एग्जांपल। फिर आता है सॉलिड इन गैस। सॉलिड को गैस के अंदर हमने डिसॉल्व कर दिया, या सॉलिड डिस्पर्स इन द गैस, उसका एग्जांपल बोलते हैं उसको एरोसोल। एरोसोल इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस। कई बुक्स में इसको यहाँ पे ऐसे सॉलिड एरोसोल, एरोसोल भी लिखा हुआ है, सॉलिड एरोसोल, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स दे आर डिसॉल्व्ड इन द एयर या गैस। इसका एग्जांपल क्या, स्मोक। स्मोक में क्या होता है, जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं दे आर डिस्पर्स्ड इन एयर। डस्ट फ्रॉम, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल मिट्टी है, दे आर डिसॉल्व्ड इन द एयर या डिस्पर्स्ड इन द एयर। हेज, हेज में क्या होता है, कुछ गैसेस होती हैं, गैस पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिस्पर्स किस में होते हैं, एयर में। या डेंस फ्यूम जो होते हैं, वो डेंस फ्यूम नहीं,
मेटेलिक पार्टिकल्स ही होते हैं, दे आर डिस्पर्स्ड इन द एयर। फिर आता है लिक्विड। यहाँ पर जो लिक्विड है दैट इज द डीपी, वो किस में डिस्पर्स्ड है, दैट इज डिस्पर्स्ड इन द सॉलिड। जो लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर जो है डिस्पर्स्ड है। इसमें बेस्ट एग्जांपल जेल, जितनी भी इसको जेल बोलते हैं, तो जेली हो गया। जेली में क्या है, जो लिक्विड होता है वो सॉलिड के अंदर डिस्पर्स्ड है। ओके, बटर, चीज, बटर में क्या है, जो वाटर है दैट इज डिस्पर्स्ड इन द फैट। चीज में भी सेम चीज है, बूट पॉलिश हो गया, कर्ड। फिर आता है लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, दिस इज इमल्शन। इसको भी हमने स्टडी करना है। जेल को भी स्टडी करेंगे पर इतना डिटेल में नहीं है, पर इमल्शन को डिटेल में स्टडी करना है। तो उसका एग्जांपल है मिल्क। मिल्क में क्या है, जो प्रोटीन्स हैं दे आर डिस्पर्स्ड इन द वाटर। हेयर क्रीम है, फैट जो है वो वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड है। इमल्सिफाइड ऑयल्स, तो इसमें भी जो ऑयल है, जो वाटर होता है थोड़ा ऑयल्स के अंदर डिस्पर्स्ड होता है। मेडिसिन्स, जितने भी ये सिरप्स हैं, तो उसमें जो मेडिसिन्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में वो वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड है। देन लिक्विड इन गैस, जो लिक्विड है वो गैस के अंदर डिस्पर्स्ड है। एग्जांपल इज एरोसोल। इसमें मिस्ट हो गया, फॉग हो गया। देखो फॉग क्या होता है, बेसिकली ये कोलाइडल सॉल्यूशन है वाटर। जो वाटर होता है दैट इज डिस्पर्स्ड इन द एयर। ठीक है, क्लाउड भी सेम थिंग है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। फिर उसके बाद में आता है गैस इन सॉलिड। गैस जो है वो सॉलिड के अंदर डिस्पर्स्ड है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल। इसको सॉलिड सोल बोलते हैं। ओके, एग्जांपल इसका है प्यूमिक स्टोन, फॉर्म रबर। फॉर्म रबर में क्या होता है कि जैसे रबर है वो लिक्विफाई करके उसमें जब हम एयर बबल को पास करते हैं तो गैस डिस्पर्स हो जाती है सॉलिड। इसका एक और एग्जांपल भी है, दैट इज स्पॉन्ज। या स्पंज जैसे घरों में हम यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग द दिस यूटेंसिल्स, तो वो जो स्पॉन्ज होती है उसमें जो एयर होती है दैट इज डिस्पर्स इन द सॉलिड। फिर एंड में आता है गैस इन लिक्विड। गैस को लिक्विड के अंदर डिस्पर्स किया है, तो वो एग्जांपल फॉर्म हो गया सोप, लेदर। सोप में क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसके अंदर गैस होती है, जो सोप बबल होता है। फ्रॉथ इज द सेम थिंग, जो लिक्विड है उसके अंदर गैस है। whipped क्रीम, सोडा वाटर। सो दिस इज एग्जांपल्स ऑफ डीपी एंड डीएम। मतलब यहाँ पे क्लासिफाई किया गया टाइप ऑफ क्लाइड को कि किस डीपी, जो कौन सी डीपी किस डीएम के अंदर है। यहाँ पर गैस इन गैस कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं हो सकती। द रीजन इज दैट जो गैस और गैस का मिक्सचर है दैट इज ऑलवेज होमोजीनियस। ये मैंने आपको बताया था कि दो गैसेस का मिक्सचर कभी भी हेटेरोजीनियस नहीं हो सकता, वो ऑलवेज दैट इज होमोजीनियस। इट विल ऑलवेज फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर, वो हेटेरोजीनियस कभी भी नहीं हो सकता। आगे चलते फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम इसको और क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो डीएम है डिस्पर्जन मीडियम, उसको वाटर ले लिया तो उसको एक्वासोल बोलेंगे। अगर अल्कोहल लिया है तो उसको अल्कोसोल। अगर बेंजीन ले लिया तो दैट इज बेंजोसोल। अगर एयर लिया तो दैट इज द एरोसोल। तो अल्कोलोसोल है तो यानी कि आपका डीएम यहाँ पर अल्कोहल है। अगर एरोसोल बोला गया है तो यहाँ पर डीएम क्या है, एयर। तो इस तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डीपी एंड डीएम। डीपी एंड डीएम पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन कैसी है, तो दो क्लासिफिकेशन बनती है। वन इज द लायोफोबिक लायोफिलिक कोलाइड, या इनको इंट्रिंसिक कोलाइड बोलते हैं। एंड सेकंड इज द लायोफोबिक कोलाइड्स और द डिस्टिंक्सिंग कोलाइड्स। अब ये लायोफिलिक, पहले इस टर्म को देखते हैं। ओके, लायोफिलिक, लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिल का मतलब होता है लव। जो फिल है दैट इज लव, यानी कि लिक्विड लविंग, लिक्विड लविंग कोलाइड्स। अब नाम से क्लियर है कि यहां पर लिक्विड लविंग है। लिक्विड क्या होगा, दैट इज द डीएम। अब उसको लव कौन करेगा, दैट इज डीपी। यानी डीपी प्लस डीएम जो है उनमें लव है, यानी कि डीपी
is interacting with DM, या there is an attraction between the DP and DM. So this is the definition. Colloidal solution in which the particles of the dispersed phase have great affinity for the dispersion medium. यहाँ पर attractive forces होंगी DP और DM के बीच में. Example इसके glue solution, gelatin, starch, protein, egg albumin. जैसे glue है, glue या gum solution है, तो जो गम पार्टिकल्स होते हैं उनकी वाटर के प्रति एफिनिटी होती है. ऐसे जेलेटिन जो होती है उसकी वाटर के प्रति एफिनिटी है. स्टार्च को वाटर के अंदर डिसॉल्व करो तो फटाफट वो डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि स्टार्च और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. ऐसी ग्लू या गम पार्टिकल्स की वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो जहां पर भी ऐसी बॉन्डिंग बनेगी तो वो इजिली क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा. ये लायोफिलिक है. यहाँ पर लिक्विड जरूरी नहीं कि वाटर ही हो, कुछ और भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है. अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोफिलिक कर देता हूँ, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर जो डीएम है दैट इज वाटर. अगर लायोफिलिक है इसका मतलब लिक्विड, लिक्विड कोई भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, बेंजीन भी, कुछ भी हो सकता है. पर अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोफिलिक कोलाइड बोल दिया तो यहाँ पर डीएम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वाटर. उसके बाद में दूसरे दैट इज द लायोफोबिक कोलाइड्स और एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स. अब इसमें क्या है, लायो मतलब लिक्विड, फोबिक मतलब हेटिंग, तो लिक्विड हेटिंग कोलाइड्स. तो यहाँ पर डीपी और डीएम के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होती. कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज हैव नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम. डीपी और डीएम के बीच में कोई अट्रैक्शन या एफिनिटी नहीं है. तो इसके एग्जांपल क्या है, एजी, AU, हाइड्रोक्साइड्स लाइक AlH3, FeH3, मेटल सल्फाइड. देखो सिल्वर को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मेटल और वाटर के अंदर कोई एफिनिटी नहीं है, पर फिर भी डिसॉल्व करते हैं हम. उस किस मेथड से करते हैं वो बाद में बताऊंगा. तो यानी उनके बीच में कोई अट्रैक्शन है पर फिर भी हम डिसॉल्व कर रहे हैं, उसको किसी तरीके से बना रहे हैं. तो दैट इज द लिक्विड लायोफोबिक कोलाइड्स. और अगर यहाँ पर मैंने वाटर को यूज कर लिया तो दैट इज द हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स. So this is the basic of lyophilic and the lyophobic. तो अब इनमें हम देख लेते हैं डिफरेंशिएशन पॉइंट्स के क्या क्या इसमें डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हैं. तो सबसे पहले तो जो लायोफिलिक सोल जो है, लायोफिलिक कोलाइड्स होती हैं, उनको हम बनाते कैसे हैं. दे आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टिंग मिक्सिंग द डिस्पर्जन मीडियम. जो लायोफिलिक हमने डीपी लिया उसको हमने डिस्पर्जन मीडियम के साथ में डायरेक्ट मिक्स किया तो फटाफट लायोफिलिक सोल या लायोफिलिक कोलाइड बन गया. एग्जांपल जैसे सपोज करो गम सॉल्यूशन है. गम सॉल्यूशन में क्या होता है, जो गम होता है वो एक ट्री से मिलता है हमको. अगर उसमें सीधा हमने उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो गम सॉल्यूशन बन जाएगा. घर में आपने स्टार्च सॉल्यूशन बनाते हो, स्टार्च मार्केट में मिलता है, उसको सीधा वाटर के अंदर डिसॉल्व करो तो स्टार्च सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड है, कोई मेथड की जरूरत ही नहीं है. बट जो लायोफोबिक सोल्स या कोलाइड होते हैं दे आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टिंग मिक्सिंग विद द मीडियम. उसका एग्जांपल क्या है, आपने गोल्ड सोल बनाना है या सिल्वर सोल बनाना है तो सिल्वर घर में आपके रखी होगी, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करो, क्या डिसॉल्व हो जाएगी, क्या सोल बन जाएगा, नहीं बनेगा. उसको बनाने के स्पेशल मेथड होते हैं. इजीली नहीं है कि डायरेक्ट मिक्सिंग किया डीपी और डीएम को तो बन गया. कुछ मेथड होते हैं, वो मेथड्स क्या होते हैं बाद में करेंगे. लिटिल और नो चार्ज ऑन द पार्टिकल्स. जो डीपी पार्टिकल्स होते हैं या डीएम पार्टिकल्स होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, होता है तो थोड़ा सा ही होता है, वैसे तो होता ही नहीं, अगर होगा भी तो थोड़ा सा ही होगा. जबकि लायोफोबिक में केस में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं डीपी, जो डिस्पर्स फेड पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का होना बहुत जरूरी है. बिना चार्ज के बन ही नहीं सकते. पार्टिकल्स आर जनरली सॉल्वेटेड. जब उनके बीच में इंट्रैक्शन है, डीपी और डीएम के बीच में इंट्रैक्शन है, तो ऑटोमेटिकली जो डीएम पार्टिकल्स होंगे वो डीपी को सराउंड करके रखेंगे. तो पार्टिकल आर जनरली सॉल्वेटेड. नो सॉल्वेशन ऑफ पार्टिकल्स, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है. गोल्ड जो है, अगर गोल्ड को वाटर के अंदर डाल दो तो इनके बीच में किसी किस्म की कोई बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ठीक है. दिस इज द गोल्ड पार्टिकल, तो वाटर के साथ में कोई बॉन्डिंग नहीं कर सकता. विस्कोसिटी हायर देन द डिस्पर्जन मीडियम सेट टू ए जेल. जो विस्कोसिटी होती है इसकी हायर होती है डिस्पर्जन मीडियम में, क्योंकि डिसॉल्व किया है.
हमने गम को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ऑटोमेटिकली जो विस्कोसिटी होगी हायर होगी। अगर आपने मतलब गम तो आपने कभी यूज की होगी तो वो वाटर से थिकर ही होती है, ठीक है। तो इसकी जो विस्कोसिटी होती है सेम एज द मीडियम, डू नॉट सेट टू ए जेल, मतलब ये जेल फॉर्मेशन करती है, ये कोई जेल फॉर्मेशन नहीं करती। विस्कोसिटी ऑलमोस्ट सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम पर ऑलमोस्ट द सेम, प्रेसिपिटेटेड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे अगर इसको प्रेसिपिटेट करना है, प्रेसिपिटेट मतलब क्या है कि अगर सपोज करो गम आपने लिया और उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, बाद में आपने गम को अलग करना है वाटर के अंदर से, तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स करना पड़ता है। अब वो कैसे काम करते हैं वो बाद में समझाऊंगा, पर इलेक्ट्रोलाइट्स उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे, मतलब गम को अलग कर देंगे और वाटर को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट है, जबकि यहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से ही काम हो जाएगा, गोल्ड अलग हो जाएगा वाटर अलग। इसकी मेथोडोलॉजी बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं। इट इज ए रिवर्सिबल, गम लिया, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, गम सॉल्यूशन बन गया, बाद में उसको हीट किया तो वाटर सारा निकल गया, गम रह गया, बाद में उसको गम को फिर वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे तो फटाफट बन जाएगा। तो रिवर्सिबल मेथड है, पर ये इरिवर्सिबल है। एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद में अगर हमने उसको डीकम्पोज कर दिया या किसी तरीके से रिमूव कर दिया, हमने गोल्ड सोल बनाई तो गोल्ड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, किसी तरीके से गोल्ड अलग हो गई वाटर से, तो गोल्ड अलग वाटर अलग। अब मुझे फिर गोल्ड सोल बनानी है तो मुझे पूरा मेथड फिर अपनाना पड़ेगा, जिस भी मेथड से बना रहा हूं। तो ये इरिवर्सिबल होते हैं। डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, ये कोई टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते, पर ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। अब टिंडल इफेक्ट क्या चीज है वो जब करेंगे तब बताऊंगा। पार्टिकल्स माइग्रेट टू नोड और कैथोड और नॉट एट ऑल, ठीक है। माइग्रेट जो इसके पार्टिकल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं नोड और कैथोड के, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज। अगर चार्ज है तो माइग्रेट करेंगे, इनके माइग्रेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल ही होंगे, हमेशा चार्ज पार्टिकल होंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफिलिक। द मेन पॉइंट इज दैट कि जो लायोफिलिक सोल्स हैं इनको बनाना आसान है, क्योंकि डीपी प्लस डीएमए जो है दैट इज इंटरेक्शन। ये डीपी और डीएम में कोई इंटरेक्शन नहीं है, नो इंटरेक्शन, तो इसलिए इनको बनाना मुश्किल। आगे चलते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्या है, तो जैसे सपोज करो पॉजिटिव सोल की बात करता हूँ। पॉजिटिव सोल का मतलब है यहाँ पर दिस इज वाटर, ये वाटर इसमें क्या है दैट इज एक्टिंग एज द डीएम, और यहाँ पर SnO2 TiO2 AlOH3 की सोल है। जैसे AlOH3 की सोल है तो दिस इज द पार्टिकल ऑफ AlOH3। अब इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। यहाँ पर चार्ज का मतलब ये है। नेगेटिव सोल का मतलब क्या है कि सपोज करो दिस इज वाटर और दिस इज अ गोल्ड सोल, तो दिस इज अ पार्टिकल ऑफ गोल्ड Au, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। अब वो कैसे आता है, उसका मेथड एक होता है, जब जिसको बनाते हैं ना किसी भी सोल को तब उसके ऊपर ही चार्ज आ जाता है। अब वो कैसे आता है वो बाद में करेंगे, पर ये एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। द रीजन इज दैट ये जेई मेंस में पूछे हैं, नीट और जेई मेंस में पूछते हैं। उसको याद करने का तरीका क्या होता है, जो ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं ये हमेशा पॉजिटिव सोल्स होंगे। AlOH3 हो गया, FH3 हो गया, ऑक्साइड्स, जितने भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और जितने ये सल्फाइड सोल्स हैं या मेटल सोल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव सोल्स, ठीक है। ब्लड, क्ले, चारकोल, स्टार्च, ये सारे के सारे नेगेटिव सोल। तो देखो याद करना मुश्किल है पर याद करना पड़ेगा इसको, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। ब्लड पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड क्या सोल है, ब्लड इज ए नेगेटिव सोल, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। आगे चलते हैं। फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये वाला पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज, जो टाइप डीपी किस किस्म की है उसमें किस किस्म के पार्टिकल्स जो हैं वो डीपी को फॉर्म कर रहे हैं।
सबसे पहले आते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर क्लाइड्स। इनके नाम से ही ये क्लियर होंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर क्लाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर क्या समझ में आता है? एक से ज्यादा मॉलिक्यूल। तो अगर कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल से बने हुए हैं तो उनको बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर क्लाइड्स। On this solution, a large number of atoms or smaller molecules of substance aggregate together to form a species having size in colloidal range, that is a sulfur sol. अब इसको मतलब क्या है, इसको समझो। मल्टी मॉलिक्यूलर क्लाइड्स कैसे बनते हैं? देखो मैंने आपको बताया है कि जो कोलाइडल साइज है, जो कोलाइडल पार्टिकल साइज है, वो क्या होना चाहिए? वो 1000 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए और 1 नैनोमीटर से बड़ा। ये इसकी कंडीशन है। दिस इज द कोलाइडल साइज, कोलाइडल साइज। सपोज करो मैं सल्फर सोल्ट को बना रहा हूं, तो जो S8 होता है दैट इज ए सल्फर मॉलिक्यूल, पर इसका जो साइज होता है वो कितना होता है? दैट इज 10⁻⁻² नैनोमीटर। ये इतना होता है। ओके, तो ये तो कोलाइडल रेंज में आ नहीं रहा। ठीक है, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ सल्फर पार्टिकल्स जो है, जैसे S8 है, काफी S8 पार्टिकल्स आपस में जुड़ना स्टार्ट हो गए। सपोज करो ये जो इन्होंने एग्रीगेट बनाया 10⁻³ 1000 S8 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, तो इनका साइज क्या हो जाएगा? अगर 10⁻³ जुड़ गए, एक का 10⁻² नैनोमीटर है, तो जब ये आपस में जुड़े तो इनका जो इफेक्टिव साइज आ गया दैट इज 10 नैनोमीटर। तो ये 10 नैनोमीटर कोलाइडल रेंज में आ गया। तो इस तरीके से ये जो है सल्फर सोल बनेगी। अब देखो दिस इज नॉट ए सिंगल एसिड मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स हैं कि आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दिस इज ए मल्टी मॉलिक्यूलर, इसमें एक एसिड मॉलिक्यूल नहीं है, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल है। तो दिस सल्फर सोल विल बी कॉल्ड द मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। दिस इज द वन थिंग, ये है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। फिर आता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। नाम से क्लियर है, मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉर्म कर रहा है उसका साइज इतना बड़ा है, एक मॉलिक्यूल का ही, कि वो कोलाइडल रेंज में आ गया। सिंपल चीज। यहां पर जैसे सपोज करो स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका अपना ही साइज इतना बड़ा है, एक स्टार्च मॉलिक्यूल साइज का इतना बड़ा है कि वो इटसेल्फ ही कोलाइडल रेंज में है, तो उसको आपस में कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं, वो इटसेल्फ ही कोलाइडल रेंज में है। तो स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम ये नेचुरल है। नायलॉन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर ये मैन मेड है। तो अगर ये कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं तो वो मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स की कैटेगरी में आती है। फिर आता है एसोसिएटेड कोलाइड्स, मिसल्स, इंपॉर्टेंट है और इसी पे जो है आगे हमने डिस्कस करना है। सोप एक्शन भी आएगा, इसी पे बेस्ड होता है, तो इसको देखते हैं। अब ये जो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं, ये इनको मिसल्स बोलते हैं। इनका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। ये लो कंसंट्रेशन पे बिहेव करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तब ये कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉर्म नहीं करेंगे। बट अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता हूँ डीएम के अंदर, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। लो कंसंट्रेशन पे बिहेव करेंगे एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन ही बनाएंगे, एज ए ट्रू सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव करेंगे। पर जैसे ही हाई कंसंट्रेशन करता हूँ तो आपस में जुड़ के ये कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉर्म करेंगे। अब ये कैसे काम होता है उसको स्टडी करते हैं। यहां पर जो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं उनमें बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक एंड होते हैं। जो लायोफिलिक एंड होता है वो पोलर होता है, जैसे सोडियम सिलेट्स जो सोप होते हैं C17H35CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, उसमें एक आपका लायोफिलिक हेड होगा जो कि ये चीज होगी, जो कि पोलर होगा, एंड जो लायोफोबिक हेड होगा वो नॉन पोलर होगा। अब इसको जरा समझते हैं अगले उस पे, दिस। अब यहां पे देखो, यहां पे क्लियर होगा, दिस इज द सोप C17H35CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ओके,
इसको मैं, ये जो पूरी चेन है इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, इसमें अब ये जितना भी है पार्ट, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, इतने पार्ट में, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट। दिस इज कॉल्ड द नॉन पोलर पार्ट या हाइड्रोफोबिक पार्ट। नॉन पोलर टेल भी बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट इतना जो है। और जहां पे पोलैरिटी आ रही है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर तो प्रॉपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोफिलिक पार्ट या पोलर हेड। द रीजन इज दैट इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर, लाइक दिस। वाटर ये हो गया partial positive, partial positive, partial negative. So it can form hydrogen bond with water. यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है। सो हाइड्रोफिलिक पार्ट या पोलर, अब या पोलर हेड, दिस इज नॉन पोलर टेल या हाइड्रोफोबिक पार्ट, इसमें दोनों ही प्रेजेंट है। अब यहां पर लोअर कंसंट्रेशन में क्या होगा, जब जैसे इसको वाटर के अंदर डाला, ठीक है, ये Na पॉजिटिव तो निकल गया। अब क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन में क्या होगा, ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, दीज आर द इंडिविजुअल, सोप मॉलिक्यूल्स हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें जो नेगेटिव पार्ट है ये वाटर के साथ में होगा, ऑब्वियसली है, क्योंकि वाटर पोलर होता है तो नेगेटिव पार्ट दैट विल बी अटैच्ड विद द वाटर। और जो नॉन पोलर पार्ट है, जो ये एरो से ये जिगजैग है, ये वाटर के साथ में बॉन्डिंग नहीं करेगा। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ऊपर है, पर ऊपर नहीं है, पर वाटर के साथ में कोई बॉन्डिंग नहीं कर रहा। ओके, तो इस तरीके से ये इंडिविजुअल आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। बट ये कब होगा, ये होगा लोअर कंसंट्रेशन। बट जैसे ही मैं इसके अंदर मोर एंड मोर डालना स्टार्ट करता हूं सोप मॉलिक्यूल्स, तब क्या होगा, तब ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं दे विल फील अट्रैक्शन, ये आपस में अट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देंगी, अट्रैक्ट करेंगी, एंड दे विल फॉर्म ए मिसल, आपस में जुड़ना स्टार्ट हो गया। ये नॉन पोलर पार्ट्स हैं, ये आपस में जुड़ना स्टार्ट हो गए, तो ये एक आयनिक मिसल को फॉर्म कर लेंगे, जिसमें ये वाला जो पार्ट है वाटर के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है और ये आपस में जुड़े हैं। इसको आगे समझते हैं। ये इस किस्म से हो गया, देखो ये 2D फिगर है बट मोर क्लियर है। तो दिस इज द, मतलब ये आपका जो है पोलर पार्ट है, दिस इज द नॉन पोलर टेल। तो नॉन पोलर आपस में मिलना स्टार्ट हो गए, क्योंकि है तो ये हैवी, कितनी बड़ी चेन है, तो आपस में मिलके इस किस्म की ये मिसल फॉर्मेशन करना स्टार्ट करके। अगर मैं यहाँ पर वाटर को लेके आता हूँ कि दिस इज वाटर, तो ये वाला जो पार्ट है इट इज मेकिंग बॉन्ड विद द वाटर, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, तो ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। सो दिस इज ए मिसल, मिसैले भी बोल देते हैं, मिसल बोल देते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन जो है उस पर मत जाना। तो दिस इज मिसल फॉर्मेशन। देखो अब यहाँ पर कोई ऑयल नहीं है, पर सपोज करो कोई, अगर हमने जब कपड़े को क्लीन करना होता है, या सपोज करो कोई क्लोथ है जिसपे ग्रीस लगी हुई है, ऑयल लगा हुआ है, तब और भी अच्छी चीज होती है। तब क्या होता है, ये तो हाइड्रो नॉन पोलर पार्ट्स आपस में जुड़ रहे हैं, पर सपोज करो इनको कोई ऑयल मिल गया, तो ये फटाफट, या ग्रीस पार्टिकल मिल गया तो फटाफट वहां पे जाके स्टिक करते हैं, तो ये मिसल फॉर्मेशन फैसिलिटेट हो जाती है। इट गॉट्स फैसिलिटेटेड। वैसे भी मिसल फॉर्मेशन बननी थी, अगर कोई डर्ट वगैरह नहीं है तो भी बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर उनको मिल गया तो वहां पे जाके स्टिक हो जाएंगे, तब मिसल फॉर्मेशन और फैसिलिटेट हो जाएगी। यहां पर एक चीज जो है वो रहेगी बतानी है आपको। मैं बैक स्लाइड पे वापस जाता हूं। यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। वन इज द टेम्परेचर। मिसल फॉर्मेशन जो होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। वो टेम्परेचर क्या होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर होता है। अब ये क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट क्राफ्ट। मतलब कोई भी सोप है और आप लिक्विड लेते हो, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको चाहिए। कम टेम्परेचर में मिसल फॉर्मेशन नहीं होती, थोड़ा टेम्परेचर आपको चाहिए लिक्विड का, उसी पे मिसल फॉर्मेशन होगी। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है वो सब में नहीं जाना, बट इट द टेम्परेचर एट विच द मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज अबव देन क्राफ्ट टेम्परेचर। अगर क्राफ्ट टेम्परेचर सपोज कर लो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 1 डिग्री 2 डिग्री पे हो जाएगी।
पर -1 पे नहीं होगी मिसल फॉर्मेशन. सो वन थिंग इज टेम्परेचर. टेम्परेचर शुड बी मोर देन क्राफ्ट टेम्परेचर. क्राफ्ट टेम्परेचर किस चीज पे डिपेंड करेगा? लिक्विड पे. किस में आप बना रहे हो? लिक्विड मतलब यहाँ पर डीएम पे और डीपी पे, इन दोनों पे डिपेंड करेगा. दूसरा होता है कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो आप डाल रहे हो, इट शुड बी ग्रेटर देन सीएमसी. बट इज सीएमसी, सीएमसी की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन. अब ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है डीपी पे और डीएम, दोनों पे डिपेंड करती है कि डीपी कौन सी है आपकी और डीएम कौन सा है. तो वो कंसंट्रेशन इट शुड बी ग्रेटर देन सीएमसी. अब वो कैलकुलेट कैसे करनी है वो आपका काम नहीं है, वो ऑलरेडी आपको दिया होगा. ठीक है, बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी ग्रेटर देन सीएमसी एंड द टेम्परेचर इट शुड बी ग्रेटर देन द क्राफ्ट टेम्परेचर. अगर सीएमसी 10⁻⁴ मोल पर लीटर है तो सीएमसी कभी भी 10 जो मिसल फॉर्मेशन है वो कभी भी 10⁻⁵ मोल पर लीटर पे नहीं हो सकती, इससे ग्रेटर चाहिए. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशन. कमिंग बैक टू द दिस वन, दिस इज द 3D फिगर. ये इसकी 3D फिगर है कि 3D में कैसे होता है. तो ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द नॉन पोलर पार्ट, सॉरी दिस इज द पोलर पार्ट जो ब्लू वाला है. वन, और जो ये रेडिश नजर आ रहे हैं दैट इज द नॉन पोलर. तो नॉन पोलर आपस में जुड़ रही है. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई डर्ट वगैरह तो उसको एक एक करके रिमूव कर रहे हैं. तो ये इसकी 3D रिप्रेजेंटेशन है. तो आगे चलते हैं. यहाँ पे क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है उसको भी देख लेते हैं. तो ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं. मिसल फॉर्मेशन से ही आपका क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप्स होता है. तो सपोज करो दिस इज अ सरफेस, ये कोई क्लोथ है, उसकी सरफेस पे ग्रीस लगी हुई है. ओके, तो सोप्स और डिटर्जेंट डिजोल्व इन द वाटर, लोअर कंसंट्रेशन पे है. ठीक है, फिर क्या किया, कंसंट्रेशन को हाई किया. तो जो सर्फेक्टेंट है, आयंस है या डिटर्जेंट आयंस, दे ओरिएंट देमसेल्फ इनटू ग्रीस एंड वाटर. तो अपने आप को ओरिएंट कर लिया. तो ये तो पता है नॉन नॉन पोलर पार्ट है, तो ये ग्रीस के साथ जाके अटैच होगा. ओके, यहाँ पर मिसल फॉर्मेशन हो जाएगी, नजर नहीं आ रही पर मिसल फॉर्मेशन हो जाएगी. फिर उसके बाद में क्या होगा, अब जब यहाँ पर एग्रीगेट फॉर्मेशन हो रही है तो ये ग्रीस पार्टिकल्स को यहाँ से रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे. द रीजन इज दैट ये यहाँ पर इम्बेडेड है या अट्रैक्टेड है दिस नॉन पोलर पार्ट्स, और ये जो है दीज आर द पोलर पार्ट्स जो वाटर के साथ में अटैच है. तो ये वाटर के साथ में अटैच है और दिस नॉन पोलर पार्ट, ये नॉन पोलर पार्ट ये ग्रीस के साथ अटैच है. तो जब भी रबिंग होती है, रबिंग आप चाहे हैंड से करते हो, ब्रश से करते हो या मशीन में करते हो, so these non-polar parts they are attached with this grease and the polar part it is attached with the water. तो ये इसको रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं. चाहे पार्ट्स में करते हैं, पूरे का पूरा ग्रीस नहीं रिमूव करेंगे, कुछ पार्ट को रिमूव कर देंगे. फिर ये इससे फिर लगे हुए हैं, इसके कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया. पूरी की पूरी ग्रीस एक बार नहीं होती, वो कुछ पार्ट्स में रिमूव होती है. उसके बाद में एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, चलो ये रिमूव तो होगी ग्रीस, बाद में ग्रीस पार्टिकल्स आपस में या डर्ट पार्टिकल्स आप में जुड़ भी तो सकते हैं. क्या जुड़ सकते हैं, बता सकते हो? ये जुड़े, ये आपस में क्या जुड़ सकते हैं? यहाँ पर उन्होंने अलग तो कर लिया, जो ये डिटर्जेंट या सोप पार्टिकल्स है यहाँ पर अटैच होके उन्होंने इसको रिमूव कर दिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि दे आर फोर्सिंग इट टू ब्रेक, इन्होंने ब्रेक कर दिया. तो दीज आर द स्मॉलर ग्रीस पार्टिकल्स. क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं? सपोज कर लो सॉल्यूशन के अंदर ही है, क्या आपस में जुड़ सकते हैं? दे कैन नॉट ज्वाइन. द रीजन इज दैट जब आपको डायग्राम नजर आ रहा है तो दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे.
तो grease particles attach with this detergent molecules, it would have a negative charge. The negative charge would repel each other. तो ये ग्रीस पार्टिकल्स को जुड़ने नहीं देगा आपस में. एक बार अलग हो गया तो अलग हो गए, आपस में जुड़ नहीं सकते, बिकॉज दे आर अटैच विद द पोलर पार्ट्स हैविंग द नेगेटिव चार्ज. तो इस तरीके से ये क्लीन होता है. जो क्लोथ क्लीनिंग मैकेनिज्म है इस तरीके से होता है, पर जरूरी नहीं कि हो ही जाए. द रीजन इज दैट, ये तो मैंने आपको सिंपल समझा दिया, पर ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लोथ है, क्लोथ और ग्रीस के अंदर एक इफेक्टिव बॉन्डिंग है. इट हैज एन इफेक्टिव बॉन्डिंग. तो ये तो इसको रिमूव कर रही है, पर ग्रीस ने क्लोथ के साथ में एक बहुत इफेक्टिव बॉन्डिंग की हुई है, तो रिमूव करना आसान नहीं है. ओके, तो ये इस तरीके से रिमूव नहीं हो पाएगा. दूसरी चीज, ज्यादा डिटर्जेंट अप्लाई करेंगे तो कपड़े को खराब भी कर सकता है. तो उसके लिए क्या सोल्यूशन होता है? उसके लिए क्या सोल्यूशन होता है? उसके लिए सोल्यूशन होता है ड्राई क्लीनिंग. आप करवाते हैं अपने कोट्स की, जो एक्सपेंसिव क्लोथ्स हैं उनके ड्राई क्लीनिंग कराते हैं. तो उसमें क्या करते हैं, उसमें वाटर को इस्तेमाल नहीं करते. जो ग्रीस होती है दैट इज अ नॉन पोलर थिंग, तो उसको कैरोसिन से या पेट्रोल के उसमें से क्लीन करते हैं बाद से. अब पेट्रोल जो होता है दैट इज टोटली नॉन पोलर, तो नॉन पोलर को अपने अंदर डिसॉल्व पूरा कर ही लेगा. तो उस तरीके से वो क्लीन होते हैं. पर हर क्लोथ को हम ड्राई क्लीनिंग करा सकते हैं, एक्सपेंसिव होता है. तो देयरफॉर जो शर्ट्स या पैंट्स हैं उनके लिए हम ये सोप या डिटर्जेंट को यूज करते हैं, और जो एक्सपेंसिव क्लोथ्स हैं उनके लिए ड्राई क्लीनिंग को इस्तेमाल कर लेते हैं. हालांकि दैट इज मच मोर इफेक्टिव मेथड, बट एक्सपेंसिव है. आगे चलते हैं. अब यहाँ पर जो मिसेल्स हैं या तो उसमें कौन से कितने आयन हो सकते हैं? देखो, इट डिपेंड अपॉन कि किस टाइप का आप मिसल फॉर्म कर रहे हो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर रहे हो, कौन सा सोप मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो, कौन सा डिटर्जेंट मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो. 100 आयन भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. अब डिपेंड किस पे करेगा? सीएमसी वैल्यू. द वैल्यू ऑफ सीएमसी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डीपी एंड द डीएम. यूजली लॉन्गर द हाइड्रोफोबिक चेन, स्मॉलर द सीएमसी. अब इसका क्या मतलब है? देखो, बेसिकली जब मिसल फॉर्मेशन कब होगी? जब वो जाएगा कोलाइडल रेंज में. ठीक है, देखो आपस में जब ये जुड़ रहे थे इस तरीके से, तो ये मॉलिक्यूल साइज इट शुड बी इन द कोलाइडल रेंज. ये कोलाइडल रेंज में आना चाहिए. ओके, अब सपोज करो कोई हैवी मॉलिक्यूल है, पहले सपोज करो कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल है, तो उसको कोलाइडल रेंज में आने के लिए, ठीक है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जरूरत है. सपोज करो 100 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है या 100 आयंस की रिक्वायरमेंट है, पर किसी का साइज बिगर है तो उसका 50 से काम चल गया, तो वहां पे वैल्यू डिक्रीज होगी. क्योंकि आपको तो कोलाइडल रेंज में चाहिए कि कोलाइडल रेंज में मिल जाए. कोई 100 आयंस से कर रहा है, कोई 50 आयंस से कर रहा है. दूसरा, लेंथ ऑफ चेन कितनी है ये भी डिपेंड करता है. जितनी बड़ी चेन होगी उतना सीएमसी की वैल्यू कम होगी. तो लॉन्गर इज द हाइड्रोफोबिक चेन, स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ सीएमसी. In case of detergents like sodium lauryl sulfate, CH3, CH211, SO4 negative, Na positive, the polar group is SO4 negative. मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ फर्क किसका होगा? जो पोलर पार्ट है. तो दिस इज द मैकेनिज्म. ओके, इतना क्लियर है कि ये कैसे काम करता है, मिसल फॉर्मेशन कैसे काम करती है. इसमें कोई डाउट है तो पूछो. फिर आते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स. हम कोलाइड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो लायोफिलिक सॉल्यूशंस या लायोफिलिक कोलाइड्स, इनको तो बनाना बड़ा ही आसान है. दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपलिंग वार्मिंग द सॉलिड विद द लिक्विड डीएम. मतलब वार्म करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप कई बार डिसॉल्व करो, स्टार्च को वाटर के अंदर डिसॉल्व करो तो बन गया स्टार्च सॉल्यूशन. सिमिलरली जो गम सॉल्यूशन है, गम को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो दैट इज द गम सॉल्यूशन. तो इनको बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं है, सिंपली मिक्सिंग से ही बन जाएंगे. बट लायोफोबिक के केस में वो नहीं है. द लायोफोबिक सॉल्यूशन हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स.
इनको बनाने के लिए हमें स्पेशल मेथड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो स्पेशल मेथड्स कौन से हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले तो है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन। स्मॉल पार्टिकल्स एग्रीगेट टू फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल डायमेंशंस। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग। जैसे सपोज करो वाटर वेपर्स हैं, दे कंडेंस। वो जैसे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो आपस में कंडेंस होते हैं, जुड़ते हैं, एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, तब रेन होती है, वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर नीचे आता है। तो दैट इज द कंडेंसेशन या एग्रीगेशन। कंडेंसेशन मतलब जुड़ना, एग्रीगेशन का मतलब भी क्या है? एग्रीगेशन का मतलब जुड़ना। तो पार्टिकल्स जो हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स, वो आपस में जुड़ के एक एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, और उसका जो साइज होता है दैट इज इन द कोलाइडल रेंज। तो दैट इज द कंडेंसेशन और एग्रीगेशन। स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जुड़ के एक कोलाइडल रेंज को फॉर्म करते हैं। दूसरा इसके बिल्कुल उल्टा, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब तोड़ना। लार्जर पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू कोलाइडल साइज। एक बहुत बड़ा पार्टिकल है, इसको हमने क्रश किया है किसी मेथड से, इसको तोड़ा, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, और जो छोटे पार्टिकल्स हैं दे आर इन द कोलाइडल साइज। तो उसको बनाने के तरीके क्या हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कंडेंसेशन मेथड्स। कंडेंसेशन मेथड में सबसे पहले आएंगे केमिकल मेथड्स, कि कौन कौन से केमिकल मेथड से हम बना सकते हैं। सो colloidal solutions can be prepared by chemical reactions leading to the formation of molecule by double decomposition, oxidation, reduction or hydrolysis. These molecules then aggregate leading to the formation of salts. देखो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जिससे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्री आपस में जुड़ के क्या फॉर्मेशन ऑफ सोल्स करते हैं। तो इसमें ज्यादा एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी वाले हैं वही मैंने लिए हैं और वही पूछते हैं, इससे ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। तो सबसे पहले हैं डबल डिकम्पोजिशन। आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3, उसको H2S से रिएक्शन करवाते हैं, तो AS2S3 बना। जो बना वो क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो आपस में जुड़ के क्या बना गए? AS2S3 सोल। ओके, एंड वाटर फॉर्मेशन। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? कि यहाँ पर AS2SO3 की डिकम्पोजिशन भी हो रही है और H2SO की भी। ठीक है, H2O के साथ अटैच हो रहा है, आर्सेनिक S के साथ में। यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन का मतलब ये है। फिर अब सेकंड आती है ऑक्सीडेशन। हमने SO2 लिया और उसको H2S से रिएक्ट कराया। अब यहाँ पर क्या हुआ? जो ये सल्फर है, हाइड्रोजन सल्फाइड में जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, इट इज इन द -2 स्टेट। ये किस में कन्वर्ट हो गया? जीरो में। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन से हमने सल्फर सोल को फॉर्म किया। फिर है AuCl3 प्लस HCHO प्लस H2O, इसमें रिडक्शन से किया। यहाँ पर Au जो है इसकी +3 है, इट हैज अ +3 ऑक्सीडेशन। तो इसको HCHO से क्या किया? रिड्यूस किया, तो जो है जो गोल्ड सोल बन गई, और जो HCHO है ऑक्सीडाइज हो गया HCOH में। देन FeCl3 प्लस H2O, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो FeOH3 सोल बन गई। तो दीज आर द मेथड। अब आपको क्वेश्चन इसमें क्या आएगा? ये चार एक्शन कर लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आना कि कौन सी डबल डिकम्पोजिशन है, कौन सी ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है, और कौन सी हाइड्रोलिसिस है। तो दिस इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन इस पे पूछते नहीं है। आगे चलते हैं, फिर आते हैं डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड मतलब तोड़ना। तो सबसे पहले इसमें आता है मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन का मतलब क्या? मैकेनिकल तरीके से, किसी मैकेनिकल मेथड का यूज करके हम जो है कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो इस मेथड को हम प्रिंटिंग इंक प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे जो हम प्रिंटर्स में यूज करते हैं, या नॉर्मली जो इंक यूज करते हैं पेन्स में, तो उसको बनाने में इसका यूज करते हैं। अब इसका क्या तरीका होता है? हमने क्या किया? हमने दो क्रशर्स लिए, ये सिलेंड्रिकल व्हील्स है, पावरफुल व्हील्स होते हैं, दोनों अपोजिट साइड जो होते हैं रोटेट करते हैं। अगर ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इनमें जो गैप होता है इट इज वेरी वेरी नैरो। गैप फ्यू का होता है, का भी नहीं होता। फ्यू जो है आपका माइक्रोमीटर का ही होता है, माइक्रोमीटर सॉरी नैनोमीटर का होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से हम क्या करेंगे?
एक सॉल्यूशन डालेंगे, जैसे वाटर को डाला, और दूसरा हमने डिस्पर्स फेज को डाला, और यहाँ पर इनको क्रश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमको मिलेगी वो जो मिलेगी सोल पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे इंक मिल जाएगी, यहाँ पर हमने वाटर डाला प्लस इंक ब्लॉक्स डाले, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस डाला जिसमें इंक है, तो यहाँ पे हमको इंक मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। माइक्रोसाइज पार्टिकल पर डिस्पर्जन मीडियम, सॉरी मैं गलत बोल गया, माइक्रोसाइज पार्टिकल पर डिस्पर्जन मीडियम यहाँ से डाल रहे हैं, यहाँ से हमको सोल मिल रही है। दिस इज द इलेक्ट्रिक मोटर जो इसको रोटेट कर रही है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि इसका जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो सब यहाँ पर शो नहीं किया गया, वो शो करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे जो कूलिंग है इट शुड बी प्रॉपर, अदरवाइज जो सोल है वो डीकम्पोज भी हो सकती है, क्योंकि जब क्रशिंग होगी तो लॉट ऑफ एनर्जी दैट विल बी रिलीज्ड, उसको कूल करना जरूरी है, तो सोल को इमीडिएटली कूल भी कर लेते हैं, अदरवाइज हीट से ही सोल डीकम्पोज हो सकती है। सेकंड मेथड है ब्रीडिक्स आर्क मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है। नाउ दिस इज द मेथड विच यूज डिस्पर्जन एज वेल एज द कंडेंसेशन। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, उसको इस मेथड से बनाते हैं। अब इस डिस्पर्जन इस मेथड में करते क्या है इसको देखते हैं। इसमें डिस्पर्जन पहले तोड़ेंगे फिर उसको कंडेंस करेंगे, दोनों इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे काम करते हैं उसको देखो, पहले तो ऑपरेटर्स को देखते हैं। इसमें बड़ा सा एक कंटेनर होता है विच इज, और बीच में एक और कंटेनर है, ये आइस बात है, मतलब वाटर है, और यहाँ पर आइस रखी हुई है। फिर उसके बाद में ये जो बीकर है इसमें डिस्पर्जन मीडियम रखा हुआ है, सपोज कर लो वाटर ही रखा हुआ है, और दो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। अब इलेक्ट्रोड्स की जो चॉइस होती है, जैसे सपोज करो आपने गोल्ड सोल बनानी है, तो इलेक्ट्रोड्स गोल्ड के इस्तेमाल कर लो। अगर पूरे के पूरे गोल्ड के इस्तेमाल नहीं करने, तो जो आगे मटेरियल है इनका, दिस इज द मटेरियल, ये गोल्ड का लगा लो, ठीक है? या तो पूरे का पूरा गोल्ड इस्तेमाल कर लो, या आगे जो मटेरियल है वो गोल्ड का लगा लो। ओके, तो करते क्या, आप जरा ध्यान से देखो, इस जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हाई पावर वोल्टेज में कनेक्ट करते हैं और हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, और इनके बीच में जो गैप होता है इट इज वेरी वेरी नैरो, गैप बहुत ही कम है। तो जब हाई वोल्टेज को अप्लाई किया और जो गैप है दैट इज नैरो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रिक डाई कांस्टेंट है मीडियम का वाटर का, वो ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो यहाँ पे जो ये मेटल है, दिस मेटल, ये कंडेंस, ये क्या होगा, ये डिस्पर्स्ड होगी। डिस्पर्स मतलब टूटेगी और डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगी। वेपर में कन्वर्ट होके ये ऊपर जब जाएगी तो कंडेंस होगी। कंडेंस जिस पार्टिकल साइज में होगी दैट विल बी इन द कोलाइडल रेंज। मैं इसको ना यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने फिजिक्स में किया होगा। जैसे सपोज करो दिस इज द प्लेट, दिस इज द कैपेसिटर, ये पार्शियल पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव। इसको क्या किया गया है, इसको एक हमने बैटरी के साथ में, पावरफुल बैटरी के साथ में कनेक्ट किया, और ये वेरिएबल है, जो वोल्टेज है दैट इज वेरिएबल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ। नॉर्मली आपको पता है जो एयर होता है दैट इज इंसुलेटर, एयर तो इंसुलेटर होता है, बट मैं यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ तो होगा क्या अल्टीमेटली, यहाँ पर O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, N2 के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे दिस इज N ट्रिपल N। अब होता क्या वोल्टेज बढ़ाने से, जब मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहे हैं। वन पॉइंट पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ जाता है कि जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या करेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट करेगा कि इनकी आयनाइजेशन हो जाएगी। जो N2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में, जो O2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा O2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आयनाइजेशन ऑफ O2 एंड N2 हो जाएगा। जब यहाँ पर N2 पॉजिटिव बना तो N2 पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो यहाँ पर जो एयर है उसको बोलते हैं द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर हैज बीन ब्रोकन।
अब एयर जो है वो इंसुलेटर नहीं रही, एयर बन गई अब कंडक्टर, इसको प्लाज्मा भी बोलते हैं। तो मतलब चार्ज जो है फ्लो कर रहा है एयर के अंदर, सो नाउ इट बिकम्स द कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ब्रेक हो गया। सेम चीज यहां पर वाटर के केस में करते हैं, यहां पर छोटा गैप लिया, गैप जो है दैट इज स्मॉलर, और हाई इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, तो वाटर जो है H2O, ये कन्वर्ट हो जाता है H2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां पे लगे हुए हैं, दिस इज गोल्ड, गोल्ड की टिप लगी हुई है। तो जब इलेक्ट्रॉन या H2O पॉजिटिव इस पे हिट करते हैं तो हाई वेलोसिटी पे हिट करते हैं इसको, इतनी वेलोसिटी हाई होती है कि गोल्ड जो है वो क्या हुआ, जैसे हिट किया मेल्ट हुआ, इमीडिएटली वेपोरेट हो गया, इतनी वेलोसिटी से हिट किया, इतनी एनर्जी लिबरेट हुई कि गोल्ड के इमीडिएटली क्या वेपर बन के वाटर के अंदर ऊपर जाना स्टार्ट हो गए। पर वाटर जो है कूल है, वाटर हमने कूल किया हुआ है, तो एक तो पहले डिस्पर्स्ड हुआ, टूटा गोल्ड, उसके वेपर बने, पर इमीडिएटली वो कंडेंस होके जिस पार्टिकल साइज में आएगा वो क्या है, दैट विल बी द कोलाइडल रेंज। मेरी बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, जो कि आयनाइजेशन ऑफ वाटर से बना, उसने हिट करना है गोल्ड को। जब गोल्ड को हिट करेगा इतनी वेलोसिटी से हिट करेगा कि वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट हुआ तो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, बट वाटर प्रेजेंट है तो इमीडिएटली क्या होगा, वो कंडेंस हो जाएगा। जो वेपराइजेशन हुई है वाटर उसकी गोल्ड की, इट विल कंडेंस टू फॉर्म ए पार्टिकल ऑफ कोलाइडल रेंज, तो वो वाटर के अंदर सस्पेंडेड रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड द गोल्ड सोल। ऐसे ही सिल्वर सोल बनती है, ऐसे ही प्लेटिनम सोल बनती है। सो दिस इज द ब्रीडिंग मेथड। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ पीएच को ऐड कर देते हैं जो कि एज ए स्टेबलाइजर काम करते हैं। और यहाँ पर एक आपको आइस बाथ चाहिए, द रीजन इज दैट यहाँ पर इतनी एनर्जी डिसिपेट होती है कि इसको कूल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो वाटर का ही सारा उड़ जाएगा। अगर वाटर को कूल नहीं करेंगे और यहाँ पर इतनी एनर्जी लिबरेट होती रही तो वाटर ही वेपोरेट हो जाएगा, तो वाटर को कूल करना जरूरी है। दिस इज ओके, ये समझ में आता है आपको? तो दिस इज द ब्रीडिंग आर्क मेथड, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आता है पेप्टाइजेशन, द डिस्पर्सल ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पर एक चीज आपको और भी बता देता हूँ क्योंकि वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जब यहाँ पर ये गोल्ड पार्टिकल्स ने जब ऊपर गए थे तो मैंने इलेक्ट्रॉन ने हिट किया, तो यहाँ पर जो गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों नेगेटिव चार्ज आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने हिट किया था उसको, गोल्ड पार्टिकल को, तो इलेक्ट्रॉन वाज कैप्चर्ड बाय द गोल्ड पार्टिकल, और जब वो आपस में कंडेंस हुए तो ये जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं, एयू एयू एयू, दिस इज इन द कोलाइडल रेंज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। वो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन गोल्ड, वन ऑफ द गोल्ड पार्टिकल या गोल्ड एटम कैप्चर कर लेते हैं। सो देयर फोर दिस सोल इज नेगेटिव। आपको बताया था ना कि जो गोल्ड सोल है, सिल्वर सोल है, वो नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है? वो इसीलिए होती है, जो इसका मेथड होता है बनाने का, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है। अभी आपको पॉजिटिव सोल भी कराएंगे, पर ये बात समझ में आई, जो मेथडोलॉजी है इसको बनाने की, उसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर आता है पेप्टाइजेशन। नाउ दिस इज अनदर मेथड, ये भी डिस्पर्जन मेथड है, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे। द डिस्पर्जल ऑफ ए प्रेसिपिटेटेड मटेरियल इनटू ए कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक electrolyte in the solution is called the peptidation. The electrolyte is used called the peptidizing agent. Reverse of coagulation of soil. Coagulation of soil का मतलब क्या, वो बाद में समझेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमने एक प्रेसिपिटेट लिया कोलाइडल सॉल्यूशन का, उसके ऊपर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट को डाला, तो जब इलेक्ट्रोलाइट को डाला तो रिजल्ट क्या हुआ, वो बड़ा सा प्रेसिपिटेट छोटे छोटे उसमें पार्टिकल में डिवाइड हो गया। वो जो पार्टिकल डिवाइड हुआ उसका रेंज क्या है? दैट इज इन द कोलाइडल रेंज। एक एग्जांपल से समझते हैं, ये एक FeOH3 है,
ये FeH3 की एक लेयर है, ओके, प्रेसिपिटेट है, उसके ऊपर हमने FeCl3 को डाल दिया। तो ये FeCl3 को जब डाला तो ये FeH3 छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। तो वो FeH3 किस में डिवाइड हुआ? वो FeH3 सोल में डिवाइड हुआ। इसको आगे डायग्राम में समझते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो FeOH3 को कैसे प्रिपेयर करते हैं। हमने FeCl3 को लिया जो कि एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा है। FeCl3 Fe3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। इस FeCl3 को पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये पेप्टाइजेशन में काम में आ रहा है। अब उसके बाद में क्या हुआ? दिस इज द प्रेसिपिटेट FeOH3, ओके। यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव इस FeCl3 से मिला, इसने जाके यहाँ पर लग जाना है और ये कोलाइडल सोल को फॉर्म करेगा। पर यहाँ पे इतना समझ नहीं आया तो जो रिएक्शन है इसको यहाँ पे समझो। देखो इसको यहाँ पे बनाते, दिस इज ए बिग FeOH3 प्रेसिपिटेट। अगर ये प्रेसिपिटेट है तो आपको नेक्ड आई से नजर आता है, तो यानी कि सस्पेंशन है। दिस इज बेसिकली सस्पेंशन। अब होता क्या है, ये जो Fe3 पॉजिटिव हमने डाला वो क्या होगा, वो इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा, प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब हो जाएगा। Cl नेगेटिव भी हो सकता था बट Fe3 पॉजिटिव होगा। द रीजन इज दैट वही आयन एड्सॉर्ब होता है जो कॉमन होता है। FeOH3 किसका किसका बना हुआ है? Fe3 पॉजिटिव का, OH नेगेटिव का। तो Cl नेगेटिव ने यहाँ पर एड्सॉर्ब नहीं होना, एड्सॉर्ब होगा Fe3 पॉजिटिव। तो Fe3 पॉजिटिव इसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा। ठीक है, अब इधर ध्यान से समझो। ये बड़ा FeOH3 है, ठीक है, और छोटे छोटे Fe3 पॉजिटिव इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गए। अब होता क्या है, Fe3 पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या हो गया, रिपल्शन होनी स्टार्ट होगी। दिस इज बीइंग रिपेल्ड, ठीक है, यानी कि Fe3 पॉजिटिव जितने भी छोटे छोटे आयंस हैं इन्होंने एब्जॉर्ब किया हुआ है अपने आप को FeOH3 के बीच में, और इनमें आपस में रिपल्शन है। खुद तो अटैच है FeOH3 में और आपस में रिपल्शन है, तो होगा क्या, दिस टाइप ऑफ थिंग इट विल लीड टू द रप्चर ऑफ, ये इसकी ब्रेकेज को कॉज करेगा, ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हुआ तो होगा क्या, इसको इसी में कर देते हैं। दिस इज वन जिसपे के Fe3 एब्जॉर्ब है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये हो गया, मतलब ये FeOH3 है, दिस इज FeOH3 जिसपे Fe3 एब्जॉर्ब है। दिस इज FeOH3 जिसपे Fe3 एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, दिस इज FeOH3, दिस इज Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि अब ये जो है FeOH3, ये FeOH3, ये FeOH3, ये किस रेंज में है? दिस इज इन द कोलाइडल रेंज, ये कोलाइडल रेंज में आ गया। यानी कि एक बड़ा प्रेसिपिटेट, उसके ऊपर हमने Fe3 पॉजिटिव पेप्टाइड डाला, वो इस पे एब्जॉर्ब हो गया, और बाद में ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन Fe3 पॉजिटिव ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया जो कि कोलाइडल रेंज में आ गया। सो दिस आर द कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ FeOH3। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, थोड़ा फनियर है, कि ये एक बड़ी सी एक जॉइंट फैमिली है, दिस इज जॉइंट फैमिली जिसमें 4 और 5 ब्रदर्स हैं, ठीक है, सबकी मैरिज हुई तो ये वाइफ आ गई सबकी, ठीक है, तो दे आर अटैच विद दिस। अब वाइफ्स के बीच में रिपल्शंस हैं, ठीक है, आपस में दौरानी चढ़ाने की बनती नहीं है, तो अल्टीमेटली होगा क्या, वाइफ तो अटैच है ही है ब्रदर के साथ में, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जॉइंट फैमिली जो होगी टूटेगी और छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो जाएगी। सो जॉइंट फैमिली प्लस न्यूक्लियर फैमिली का एग्जांपल लेके इसको आप कर सकते हैं, मतलब दिस इज ए वाइफ, ठीक है, एंड दीज आर द ब्रदर्स, ठीक है। सो दिस इज द फनियर साइड। चलो समझ में आना चाहिए, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये कोलाइडल फॉर्मेशंस जो थी दैट वाज द इम्पोर्टेंट। तो इसमें वन ऑफ द थिंग जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो एजेंट ये होना चाहिए पेप्टाइजिंग एजेंट, इट शुड बी कॉमन।
अगर मैं यहाँ पर FeOH3 ले रहा हूँ तो इट शुड बी Fe3। यहाँ पर मैं AlCl3 से काम नहीं चला सकता कि Al3 पॉजिटिव एंड 3Cl नेगेटिव ले लिया। Al3 पॉजिटिव यहाँ पे जाके डिपॉजिट नहीं हो सकता, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। परफेंशली एब्जॉर्प्शन होती है। आपको कॉमन आयन चाहिए। अगर मैं प्रेसिपिटेट FeOH3 ले रहा हूँ तो यहाँ पर Al3 पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा, और अगर मैंने यहाँ पर AlOH3 ले लिया तो Fe3 पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। पूछते हैं कि कौन सा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट एज ए पेप्टाइजिंग एजेंट यूज हो सकता है, तो कॉमन आयन वाला ही होगा। अगर कोई कॉमन आयन है ही नहीं फिर कुछ भी नहीं होना। चलो ये कर लिया। उसके बाद में आती है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर तो कर लिया, पर हो सकता है उनमें कुछ इम्प्योरिटी हो। अब वो इम्प्योरिटी क्या होती है उसको देख लेते हैं। Colloidal solutions, when prepared, generally contain excessive amount of electrolytes and some other soluble impurities. While the presence of traces of electrolytes is essential for the stability of the colloidal solution, larger quantities coagulate it. It therefore necessary to reduce the concentration of those soluble impurities to a requisite minimum. So the process used for the reducing the amount of impurities to a requisite minimum is called the purification of colloidal solution. अब इसका मतलब क्या है कि जब भी हमने कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी हो सकती है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ तो चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, जो पीछे हमने किया था, तो कुछ स्टेबिलिटी के लिए चाहिए विच इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, बट लार्ज क्वांटिटी में नहीं चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कोई आयन जिसके अंदर का प्रेजेंट है उसको रिमूव करना पड़ेगा। उनको क्रिस्टलॉइड्स भी बोलते हैं, उनको हमको रिमूव करना पड़ेगा। जो प्रोसेस को यूज करेंगे दैट विल बी कॉल्ड द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो अब यहाँ पे इस चीज को एक और समझो कि जस्ट कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, इन एनी कोलाइडल सॉल्यूशन, सपोज करो मैं यहाँ पर एक कोलाइडल सॉल्यूशन को बना रहा हूँ, दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है उसको समझते हैं। देखो डीएम जो है दैट इज, वो तो एग्जिस्ट करती करती है। फिर उसके बाद में कोलाइडल है, कोलाइडल को पार्टिकल को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज द कोलाइडल। अब यहाँ पर दो टाइप की जो इम्प्योरिटीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। एक तो इससे बड़ी, जो इससे बड़ी होगी, सपोज करो ये चीज है, तो ये किस रेंज में होगी, ये होगी सस्पेंशन। ठीक है, जो कोलाइडल से बड़ी होती है दिस इज कोलाइडल पार्टिकल, तो ये जो ग्रीन वाला है ये क्या होगा, सस्पेंशन। और उससे एक छोटी भी हो सकती है। अब छोटी वाली कौन सी है, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं, पिंक। जो ये पिंक वाली है इसको बोलते हैं हम आयन या इलेक्ट्रोलाइट, या इसको बोलते हैं क्रिस्टोलाइट, क्योंकि जरूरी है इसके ऊपर चार्ज हो। तो यानी दो टाइप की इम्प्योरिटी, कोलाइडल सॉल्यूशन दैट इज नॉट इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी दो टाइप की होगी, या तो सस्पेंशन होगा जिसका पार्टिकल साइज कोलाइड से बड़ा होगा, या दूसरा हो सकता है जिसका पार्टिकल साइज छोटा हो कोलाइडल से। तो इनको प्यूरिफाई करने का तरीका क्या है, तो सस्पेंशन को का तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम क्या करेंगे, इस कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास कर लेंगे। तो इससे अगर बड़ा वाला है सस्पेंशन रेंज में है तो अपने आप ही फिल्टर ऑफ हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पर पंगा किसका है, इशू आता है क्रिस्टलॉइड्स का। अब वहां पे ये चीज फेल है। द रीजन इज दैट फिल्टर पेपर का जो पोर साइज है वो बड़ा है। कोलाइडल पार्टिकल तो पास कर ही जाएगा, तो ऑब्वियसली क्रिस्टलॉइड भी पास कर जाएगा। तो बड़ी वाली का कोई इशू नहीं है, इशू है छोटी वाली का। तो उसी में हमने प्यूरिफिकेशन को डिस्कस करना है कि जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं या इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स हैं, उनको कैसे हटाएं, उनको कैसे फिल्टर करें। तो वही हमने यहाँ पर स्टडी करना है। तो चलते हैं।
सबसे पहले आता है इसमें डायलिसिस. The process of separating the particles of colloids from those of crystalloids by means of diffusion through a suitable membrane is called the dialysis. हमने जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं उसको क्रिस्टलॉइड से डिफरेंशिएट करना है, हटाना है, सेपरेट करना है बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन. सुटेबल मेम्ब्रेन से पास करके डिफ्यूजन के थ्रू उसको हटाना है, दैट इज कॉल्ड सिंपली डायलिसिस. अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू ए पार्चमेंट और सेलोफेन मेम्ब्रेन व्हाइल द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैन पास थ्रू इट. यहाँ पर सेलोफेन या पार्चमेंट मतलब एसपीएम, हम यहाँ पर एसपीएम का यूज करते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. हमने जब सॉल्यूशंस किया था तो वहां पे ऑस्मोसिस हमने किया था, तो ऑस्मोसिस में हमने एसपीएम यूज करते थे. अब एसपीएम की ब्यूटी क्या थी कि वो अपने अंदर से जो डीएम पार्टिकल्स हैं, जैसे वाटर पार्टिकल्स हैं, उसको तो पास होने देती थी, बट जो आयन पार्टिकल्स हैं वो उनको पास नहीं होने देती थी. ठीक है, अब यहाँ पर वो एसपीएम को यूज नहीं कर रहे हैं, हम पार्चमेंट या सेलोफेन मेम्ब्रेन को यूज कर रहे हैं. उसका क्या है कि वो आयंस को तो अपने अंदर पास करने देगी, पर कोलाइडल पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास नहीं होने देगी. तो एसपीएम और पार्चमेंट या सेलोफेन मेम्ब्रेन में थोड़ा फर्क है. मैं एसपीएम को यूज नहीं कर रहा हूँ, एसपीएम में से तो जो आयंस है वो पास नहीं हो सकते, पर इस पार्चमेंट या सेलोफेन मेम्ब्रेन से आयंस क्या होंगे, वो पास हो जाएंगे. अब मेथोडोलॉजी कैसे काम करती है उसको देखो. यहाँ पे जब इसको यूज करना है तो क्या करना है, यहाँ पर हमने एक बैग लिया, ठीक है, ठीक है, वो बैग किसका है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन का है, और यहाँ पर सोल को ले लिया, ठीक है, प्रेफरेबली वाटर है, वाटर के अंदर ले लिया इसको. वाटर प्लस जो है वाटर इन द, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दे आर इन द वाटर, ओके, और उनमें क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स भी हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं. अब क्या करते हैं, यहाँ से वाटर को पास किया, हमने वाटर को यहाँ से पास करना स्टार्ट कर दिया. अब वाटर मॉलिक्यूल तो एंटर कर ही जाएंगे इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन में, क्योंकि छोटा साइज होता है. अब क्या होगा, जब मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेशर से पास कर रहा हूँ, तो अपने साथ जब क्या करेंगे, फोर्स के थ्रू यहां से क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स को भी ले जाएंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बट कोलाइडल पार्टिकल्स पास नहीं कर पाएंगे. तो इसको ऐसे ऐसे समझो कि जो मेम्ब्रेन है ये कुछ इस किस्म की है. यहाँ पे पोर साइज इसका ये है, दिस इज अ पोर साइज, ये इसमें पोर्स है. अब जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टलॉइड्स की बात कर रहा हूँ, दे आर इन द पिंक कलर, वो तो इसमें से पास कर जाएंगे इजीली क्योंकि छोटा साइज है. बट जो है कोलाइडल पार्टिकल्स जिनका साइज बड़ा है वो इससे पास नहीं करते. ठीक है, तो जितने भी क्रिस्टलाइड पार्टिकल्स हैं वो वाटर के थ्रू निकल गए. मैंने कॉन्टिन्यूस इसको किया, ठीक है, 5-6 आवर्स में, तो जितने मैक्सिमम क्रिस्टलाइड पार्टिकल निकल सकते थे निकल गए, क्योंकि उनका साइज छोटा है, पोर साइज छोटा है, उनका साइज छोटा है तो पोर से वो निकल गए. बट जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं या सोल पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर ही रह गए. तो यहाँ से वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड आपको मिल गया, आपने वाटर पास किया, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स यहाँ से निकल गए, तो बचा यहाँ पे क्या, वाटर प्लस कोलाइडल पार्टिकल या सोल पार्टिकल्स. सो दिस इज द यूज ऑफ डायलिसिस. ये बात समझ में आई? मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स थे वो पहले ही प्यूरिफाई कर ली. सस्पेंशन पार्टिकल भी नहीं निकल सकते जिनका कोलाइडल रेंज से पहले, पर वो मैं पहले ही फिल्टर कर चुका हूँ बाय यूजिंग द फिल्टर पेपर, तो उसकी टेंशन में मत जाओ, ये ऑलरेडी फिल्टर है, इसमें सिर्फ क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स है. ओके, तो दिस इज द मेथड ऑफ डायलिसिस. आगे चलते हैं. फिर आता है इलेक्ट्रोलाइसिस. जो डायलिसिस होता है वो बहुत स्लो होता है, तो हम उसको फास्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया. तो अगर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर इसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से निकल सकते हैं. जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ. जो न्यूट्रल है, सपोज करो कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ और पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के थ्रू निकल जाएंगे.
तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस को हम यूज कर सकते हैं। अब इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आती है, आपने बहुत सुना होगा, जो किडनी पेशेंट्स हैं जिनकी किडनी फेलियर होगी, उनको डायलिसिस पे रखते हैं। अब डायलिसिस क्या काम करता है उसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो डायलिसिस है, इट इज यूज फॉर द पीपल विद अ क्रिटिकल किडनी डिसऑर्डर, ग्रेव किडनी डैमेज, प्रीवियसली सीवियर रेनल फेलियर, जिनकी किडनी डैमेज हो गया, किडनी काम नहीं कर रही, 90% तक किडनी काम नहीं करती है, तो उनको क्या करते हैं, डायलिसिस पे रखते हैं। हालांकि कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, पर किसी की लाइफ बचानी है तो उसको हम डायलिसिस पे रखते हैं। अब डायलिसिस काम क्या करता है उसको समझो। हमारी बॉडी में किडनी क्या काम करती है पहले उसको समझ लो। जैसे ब्लड होता है, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लस कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती है बॉडी में, जो होता है रिमूव करना होता है थ्रू यूरिन। तो अब किडनी काम नहीं कर रही, किडनी का काम तो यही है कि ब्लड को प्यूरिफाई करती है, जो उसमें से हार्मफुल, जो क्या कहते हैं, जो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, उनको रिमूव करना। अब वो काम नहीं कर रही, क्या करें, वो तो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो डायलिसिस यूज करते हैं। अब डायलिसिस में करते हैं, देखो ये मशीन है, दिस इज अ डायलिसर, ये डायलिसर है। ये जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर वो लगा हुआ है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगी हुई है जो येलो कलर की है। अब क्या करते हैं, यहाँ वेन से ब्लड निकाला, ठीक है, दिस इज द ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड है, मतलब इसमें क्या है, आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, प्लस हार्मफुल सॉल्ट्स भी है। अब यहाँ पे पास करवाया। अब क्या होगा, ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन में आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं जा पाएंगे, छोटे एंस जाएंगे, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं यहाँ से पास कर सकते। तो क्या होगा यहाँ पर, जब इसको पास करेंगे तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे, बट जो हार्मफुल है, जो सॉल्ट्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो इसमें से पास कर जाएंगे। और यहाँ पे जब ये निकलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पास नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ से पास तो कर सकते हैं, पर यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये इनटेक और आउटटेक है, मतलब यहाँ पे इतनी बड़ी इसकी लेंथ होती है कि जैसे ही ये क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग होती है, जैसे यहाँ पर एंटर किया तो ये रिसाइकल हो रहा है। तो जो जो भी छोटे छोटे आयंस होते हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं, और यहाँ से हमको प्यूरिफाई ब्लड मिलता है। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ कि जैसे सपोज करो ये ब्लड यहाँ पे गया, इस ब्लड के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लस सॉल्ट्स हैं, मतलब ये लो ब्लड प्लस सॉल्ट्स है। तो जो ब्लड पार्टिकल्स हैं उसने इसमें एंटर नहीं करना, इसमें एंटर कौन करेंगे, सिर्फ सॉल्ट्स। ओके, यहाँ पर मॉनिटर वगैरह सब कुछ किया होता है, तो यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट्स एंटर किएंगे, और सॉल्ट्स यहाँ पर क्या करेंगे, किसी तरीके से हम उसको रिटेन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिसर्कुलेशन हो रही है। तो यहाँ पे जो एंटर होगा, जो वाटर एंटर होगा, वो प्यूरिफाइड होगा। बेसिकली अगर आप ब्लड को समझते हो, तो ब्लड के अंदर वाटर, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा प्लस सॉल्ट्स। अब जो 5 मिनट मेमोरी का काम क्या है, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा, इस सबको रोक लेना, ब्लड सेल को रोक लेना। यहाँ पे एंटर किसने किया, वाटर प्लस सॉल्ट्स ने। सॉल्ट्स को हमने यहाँ पर क्या किया, रिसाइकल कर लिया, रिमूव कर लिया। तो यहाँ पे वाटर, थोड़ा बहुत प्लाज्मा क्या होगा, री एंटर होगा। तो इस तरीके से डायलिसिस जो होता है काम करता है, पर बहुत महंगा प्रोसेस होता है। द रीजन इज दैट यहाँ पे जो अपरेटस है वो ही बहुत महंगा है। ये इतना महंगा नहीं होता, जो इसका अपरेटस होता है, जो 5 मिनट मेम्ब्रेन है, दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो लोग यूज करते हैं, पर ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। किसी को अगर इमीडिएट कुछ कंडीशंस करनी है, अगर किसकी किडनी काम नहीं कर रही, तो 10-15 मंथ, 2 मंथ्स, पर लॉन्ग लाइफ के लिए यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा आप डायलिसिस पे तो रह ही नहीं सकते। तो किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं। देन इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो थर्ड मेथड है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है।
अब नाम से क्लियर है, अल्ट्रा, नॉर्मल फिल्टर पेपर नहीं, अल्ट्रा। इट यूजेस स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स, अल्ट्रा फिल्टर्स बोलते हैं, विच आर परमेबल टू ऑल सब्सटेंसेस एक्सेप्ट कोलाइडल पार्टिकल्स। अब ये क्या है, ये एक ऐसे अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स हैं जो कि परमेबल है, मतलब इसमें से कोलाइडल पार्टिकल, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स तो पास हो जाएगा, पर कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं होगा। देखो नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होता है, दिस इज ए नॉर्मल फिल्टर पेपर। नॉर्मल फिल्टर पेपर में क्या होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन है वो भी पास कर गया, मैं चीनी का घोल इसमें से करूंगा, शुगर सॉल्यूशन पास करूंगा तो शुगर प्लस वाटर निकल जाएगा। मैं अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पास करता हूं तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से वो भी निकल जाएगा। द रीजन इज दैट जो पोर साइज है वो बिगर है। फंसेगा कौन, फंसेगा सस्पेंशन। अगर रेत को पास करूंगा, रेत का सोल्यूशन, सैंड का सोल्यूशन, तो वो फिल्टर हो जाएगा। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर तो किसी काम का नहीं है क्योंकि पोर साइज बहुत बड़ा है। तो क्या किया जाए, अगर किसी तरीके से पोर साइज को मैं रिड्यूस कर लूं, पोर साइज को छोटा कर लें, कि अगर सपोज करो दिस इज द नॉर्मल पोर साइज, इसको किसी तरीके से छोटा कर लें। अगर मैंने इसको रिड्यूस कर लिया, इतना कर लिया, अब यहां पे जो साइज है, दिस वन, जो कोलाइडल साइज है वो पास नहीं कर सकता, इतना छोटा कर लो। तो ऐसे फिल्टर पेपर को क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्रिस्टलॉइड पार्टिकल पास कर जाएगा क्योंकि छोटा आयन तो इसमें से पास कर जाएगा, पर कोलाइडल पार्टिकल नहीं पास कर पाएगा। अब ऐसे फिल्टर पेपर प्रिपेयर कैसे होते हैं उसको देखते हैं। These filter papers are permeable to all substances except colloidal particles. Colloidal particles can pass through ordinary filter paper because the size of pore is too large. However, the size of pores of filter paper can be reduced by impregnating them with the colloidal or gelatin solution to stop the flow of colloidal particle. हम उसको impregnate कर लेंगे, जो फिल्टर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसके साइज को रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग द जेलेटिन या कोलाइडल सॉल्यूशन। ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है, the colloidal solution generally uses the 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. This is important. ये जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा था 2020 में कि ऐसा कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसको यूज करते हैं, 4% solution of nitrocellulose in a mixture of aldehyde and ether। तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को यूज करके हम साइज को रिड्यूस कर लेते हैं। An ultra filter paper may be prepared by soaking the filter paper in a colloidal solution। एक पेपर को लिया, नॉर्मल फिल्टर पेपर को, उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में सोक कर लिया, फिर हार्डनिंग किया बाय डिपिंग इन ए फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन और उसको ड्राई कर लिया। तो इस तरीके से हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर को प्रिपेयर कर लेते हैं। और ग्रेडेड अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी होते हैं, हैविंग द बाय डूइंग द इम्प्रेग्नेशन विद द डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ये इम्प्रेग्नेशन का मतलब समझते हैं, रिड्यूस करना साइज को। अब ये कैसे रिड्यूस होता है उसका एक प्रैक्टिकल मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि नॉर्मली सपोज करो ड्राई कोकोनट है जिसको आप खोपा भी बोलते हो। नॉर्मली ये जो मिठाइयाँ होती हैं या पुडिंग होती है उसमें डालते हैं। तो जब भी आप इसको एक इसका वो करने वाला, ग्राइंड करने वाला वो आता है इंस्ट्रूमेंट सा, ठीक है, डिवाइस होता है जो उसको जब इसको हम इनिशियली करते हैं तो जो साइज होता है उसका कोकोनट का, पील ऑफ करते हैं तो साइज जो होता है वो बड़ा होता है। जैसे जैसे उसको हम पील ऑफ करते हैं तो साइज रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। द रीजन इज दैट कि जो उसका डिवाइस होता है, जो जिसपे हम उसको करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसकी प्रेगनेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। वहां पे थोड़ा थोड़ा वो फिल होना स्टार्ट हो जाता है जो ड्राई कोकोनट है। तो अल्टीमेटली जो उसका पील्ड ऑफ मटेरियल है उसका साइज भी थिनर होना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज द इम्प्रेग्नेशन। ऐसे ही जो फिल्टर पेपर होते हैं उसको अगर मैं सॉल्यूशंस के अंदर डिप करता हूं, डिप करने के बाद में उसको निकालूंगा तो ये जो साइज है इट कुड बी रिड्यूस्ड। तो उनको बोलते हैं ग्रेडेड फिल्टर पेपर्स। अब ये कैसे काम करेंगे, अब हमने ग्रेडेड फिल्टर पेपर को प्रिपेयर कर लिया। अब क्या करेंगे, मतलब ये एक आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर की आपको शो किया गया है।
तो क्या करते हैं, ये एक अपरेटस होता है, यहाँ पर हमने अल्ट्रा फिल्टर पेपर को लगा लिया। ओके, ये वायर मैच पे सपोर्टेड है। तो यहाँ पर हमने सोल प्लस इलेक्ट्रोलाइट को डालना स्टार्ट हो गया। अब देखो, जस्ट 1 मिनट, इसको मैं, अब ये यहाँ पर पोर साइज शो किया गया है, थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है आपको, दिस इज द पोर साइज। अब ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जो पिंक कलर के हैं तो बड़े बिगर हैं, वो तो इसमें से पास ही नहीं कर सकते, पर जो छोटे से आयंस हैं वो इसमें से पास कर जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स रहेंगे, और जितने भी क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं, वो सारी की सारी निकल गई। तो यहाँ पर वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट या वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स आपको निकल गए, और ऊपर जितना भी है यहाँ पर सारे का सारा क्या रह गया, वो आपका कोलाइड पार्टिकल्स रह गए। बाद में आपको फिर उसको रीजनरेट करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू रीजनरेट। अब बाद में इसमें फिर आपको डिस्पर्जन मीडियम मिला के, वाटर मिला के इलेक्ट्रोलाइट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसकी एक लिमिटेशन है, स्लो प्रोसेस होता है, तो इसको फास्टन करने के लिए यहाँ पे हम गैस प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर सक्शन लगा सकते हैं, ताकि ये जो प्रोसेस है फास्ट हो जाए। सो दिस इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर आती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या करते हैं, जो क्लाइडल सोल होता है, इसको इट इज टेकन इन ए ट्यूब, is taken in a cube which is placed in an ultra centrifuge. On rotation of the tube at high speeds, the colloidal particles settle down at the bottom of the tube, and impurities remain down in the solution called a centrifugate. The settled colloidal particles are mixed with an appropriate dispersion medium to regenerate the soul. इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये एक मशीन है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की। अब यहाँ पे ये आपको कुछ ट्यूब नजर आ रही है। इस ट्यूब में क्या करते हैं, हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को भर लेते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हैं, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब क्या करेंगे, इस मशीन को हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे। ठीक है, दिस मशीन इज रोटेटेड एट द हाई स्पीड। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं अंडर हाई स्पीड्स, वो नीचे बैठ जाएंगे, दे विल सेटल डाउन। बट जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे आयंस हैं, वो नहीं नीचे बैठेंगे, दे विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। बाद में हमने उसको रिमूव कर लिया, जो नीचे बैठ गए इसी तरीके से, और उनको वापस डीएम को उसमें मिक्स किया, तो डिस्पर्जन मीडियम हमारा तैयार हो गया। जैसे सपोज करो दिस है, ये फ्लूइड डिस्पर्जन ऑफ जर्मेनियम पार्टिकल है। ओके, इसमें इम्प्योरिटीज हैं, तो मैंने इसकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की, इसमें डाल के इसको जो है हाई स्पीड्स पे रोटेट किया, तो सारे का सारा जो जर्मेनियम पार्टिकल है वो नीचे बैठ गया, और यहाँ पर जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स हैं दे आर सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन। ये अभी भी सॉल्यूशन के अंदर है। बाद में यहाँ पर किसी तरीके से ड्रिल करके या कुछ भी करके रिमूव करके इसको जर्मेनियम पार्टिकल्स को मैंने रिमूव कर लिया या डिगनट ऑफ कर लिया किसी तरीके से, तो मुझको प्योर जर्मेनियम पार्टिकल्स मिल गए। बाद में मुझे उसमें डिस्पर्जन मीडियम को फिर ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हम जो है जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो दीज आर द मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ये जो लेक्चर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ हम करेंगे कोलाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंडल इफेक्ट आएगा उसमें जो है, और ब्राउनिन मूवमेंट आएगा, और दूसरे उसमें जीटा पोटेंशियल आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वो। तो मैं अभी इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स करेंगे।